which is required today. And the objective of this workshop will be to create the awareness of the students, also for the job opportunities in design. So those students who are seeing designing sector, this workshop is very important to them. Next objective of this workshop is to utilize the scenario of the pandemic to sharpening the technical skill. As you all know, this pandemic is going last year. The job opportunities are not available. Creating the job opportunities by developing some technical by using the opportunities in designing sector. I hope all students will enjoy this national webinar. It will be helpful for students in their bright futures. So thank you and go through the national webinar. Hand over to Shivani Khandagare ma'am to proceed the seminar. Thank you so much, sir, for your kind and remarkable words. So, now I would like to introduce our chief guest for today's webinar. Today, we have very dynamic and experienced personality with us for our webinar, Mr. Akshay Jain, sir. I welcome you, sir. Mr. Akshay Jain is Central Head of Livewire Nagpur. He has completed his degree in Electrical Engineering from KDK College and MBA in HR. Mr. Jain is Corporate Trainer for Electrical Software. He has experience of 1400 plus hours of corporate training of electrical professional, electrical contractors, and budding electrical engineers within the span of 5 years. He also handled project of industrial and commercial wiring, electrical layout design of the commercial and hospital. Since last 3 years, he has taken responsibility of Livewire Nagpur Center to build awareness about the electrical system design, artificial intelligence, data science, and many trending technologies. So, without wasting too much of time, I would like to request Mr. Akshay Jain, sir, to address the today's meet. Over to you, sir. A very good morning to all of you. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Okay. I'm sharing my screen. Please let me know. Is my screen visible? Yes, sir. Sir, your voice is a bit low. Sir, can you raise the volume of your mic or take the microphone? Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Now clear it is audible. Thank you so much. A very good morning to all of you. I, Mr. Akshay Jain, would like to thank you to all the authorities of the college for inviting me for such a great seminar and webinar. And a warm good morning to all the students present over here. So सबसे पहले तो मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये भी जो वेबिनार आज हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, it should be a interactive one, right? It shouldn't be like monotonous. सिर्फ मैं ही बात करूँगा और आप बस सुनेंगे, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं होगा. This will be completely interactive, right? So we will interact throughout the session. I will ask some simple questions. You will answer to me. You will ask some simple question. I will answer to you, right? Because if you would like to learn something extra, you need to interact with me, right? अगर मैं सिर्फ बताऊंगा और आप सुनेंगे तो there will be no point, right? So just make sure हमारा आज का जितना भी सेशन होगा ये fully interactive होगा and full of energy होगा, right? Because we are the electrical engineer, we are lightning the world, right? अगर हम लोग lightning कर रहे हैं तो खुद कुछ तो lightning हमें भी चाहिए, right? So please make sure this session should be interactive one. If everyone is able to hear me properly, just type yes in the chat box. Just type yes. Yes. Akhil, thank you, Akhil. Gayatri, thank you. Rehman, Aditya, thank you so much. Thank you. Chalo.
इससे ये बात तो पता चली कि everyone is listening to me, right? Thank you so much for the acknowledgement, right? So today's our topic is modeling of electrical system, right? Thank you Vikram, Rishikesh, thank you so much. चलो, तो आज तो बहुत ज्यादा मजा एकदम एंजॉय करने वाले हम लोग, क्योंकि आपका इंटरेक्शन काफी स्ट्रांग दिख रहा है आज. तो लेट्स सी ये कितने देर तक अभी मेंटेन रहता है. थैंक यू गणेश, थैंक यू. So we are initiating for this amazing webinar, modeling of electrical system. So how many of you are ready? Just type ready. If you all are ready for this amazing workshop, sorry, webinar, just type ready. Ready. Okay, great. Thank you so much. Right. So we are initiating towards this our amazing webinar that is what called modeling of electrical system. So my very first and initial question to all of you guys, what is electrical engineering? A very simple question, because as per my knowledge, you all belongs to final year or third year, right? So you must have gone through many subjects, you have learned many things, and I hope you know the answer of this question. What is electrical engineering? I'm checking through through chat box all your responses. Just like to know, what is electrical engineering? Can anyone answer in the simple words? वैसे तो बहुत सारे definitions है. I just want a simple definition. और वो simple definition पे ही सभी चीजें depend है. Whatever we discuss with the scope, opportunities in the electrical engineer, अगर वो एक sentence भी समझ जाए हमें, we are able to understand. Can I have the quick response? Okay, let's alter the question. इसी को थोड़ा अलग वे में करते हैं. यहाँ पे कितने लोग ऐसे प्रेजेंट है जिन्होंने अपनी मर्जी से इलेक्ट्रिकल ब्रांच सिलेक्ट की है? अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं कि किसी ने सजेस्ट किया था इसलिए हमने लिया, खुद की मर्जी से. दे आर वेरी मच पैशनेट अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. जस्ट टाइप यस. यू कैन ऑल्सो टाइप वाई, नो प्रॉब्लम विद दैट. शॉर्टकट का जमाना है. राइट, राइट, यस. There are many people present over here जिन्होंने खुद की मदद. Is there someone जो नो लिखेगा? नहीं, किसी ने शायद सजेस्ट किया इसलिए मैंने ले लिया. आई एम वेरी मच ग्रेटफुल कि सभी ने खुद की मर्जी से लिया है. ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट चॉइस. राइट. So basically, who are the electrical engineers? We are lightening the world. We are the electrical engineers, right? We are lightening the world. Can you understand this simple sentence? We are lightening the world. Can you imagine this complete world without electricity? Yes or no? Can you imagine this world without electricity? No, not at all. We cannot at all imagine this world without electricity. तो हम लोग ऐसी ब्रांच से बिलोंग है, सप्लाईज नहीं चल सकते, इंडस्ट्रीज कांट वर्क. एवरीवन नोज दिस प्रॉब्लम. जब शटडाउन हो गया था 5 स्टेट्स का, तो सभी को पता चल गया था व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट? इवन दो इतना हाईली इंपॉर्टेंस होने के बावजूद भी why we are confused about our electrical engineering, why it's demanding getting decreased by day, right? So basically इसमें difficulties क्या है? Why people are not finding a great opportunity in the electrical engineering, right? So here is the my question is कि ऐसा क्या गलत हो रहा है या फिर क्या चीजें नहीं पता है जहां से हमें डिफिकल्टीज क्रिएट हो रही है. सो वेरी फर्स्ट सेंटेंस यू वुड लाइक टू नो, वी आर लाइटनिंग द वर्ल्ड. और ये लाइटनिंग करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने जरूरी है टू बी अ qualified electrical engineer. We are, no doubt, we all are the electrical engineers. But in order to understand and in order to be the qualified electrical engineer, we need to acquire some extra skills, right? So here with that point,
है तो हम लोग बहुत अच्छा करियर अपना डेवलप कर सकते हैं। Whoever is asking यार इलेक्ट्रिकल में तो कोई स्कोप ही नहीं है, बहुत ही अलग ही ब्रांच है, यहाँ पे तो जॉब्स ही नहीं मिलते, सैलरी काफी कम रहती है, ग्रोथ काफी कम रहती है, तो उन सभी के लिए मेरा एक सिंपल आंसर है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच और एनी अदर कोर ब्रांच इज ओनली फॉर दैट पीपल जो पैशनेट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, अदरवाइज यू हैव नो प्लेस इन दिस इंडस्ट्री, राइट? कोई भी कोर ब्रांच या फिर इलेक्ट्रिकल इज ओनली फॉर दैट पैशनेट पीपल जो एक्चुअली इंटरेस्ट लेना चाहते हैं इस ब्रांच में। बिकॉज सिविल इंजीनियर बिल्डिंग बनाता है तो वी कैन सी द बिल्डिंग, मैकेनिकल इंजीनियर कैन डेवलप द प्रोडक्ट्स वी कैन सी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का इलेक्ट्रिकल सप्लाई किसी ने देखा है आज तक? We can make only a system, we can make only a arrangement. बाकी बटन लगाने के बाद ही पता चलता है या स्विच ऑन करने के बाद ही पता चलता है we are right or not. Is that true? Just type true if you agree with me. Just type true. Yes. Thank you so much guys for your active response. आप काफी actively reply कर रहे हैं. Thank you so much. Hope so it will maintain throughout the session, right? So electrical engineers we need to have that right spark. अगर वो right spark अगर सही समय में मिल जाए तो definitely things will change a lot in prospect, right? तो ये spark आएगा कहाँ से? पहले तो पता तो चले एक्चुअली गलती कहाँ हो रही है, right? क्योंकि हर पर्सन आता है अपने अपने डिसीजंस अपने अपने ओपिनियंस छोड़ के चला जाता है, but we need to understand one thing, everyone has their own perspective regarding any industry. It depends on his experience to evaluate the things. लेकिन जब तक कोर प्रॉब्लम या कोर बेसिक्स प्रॉब्लम पे हम लोग वर्क नहीं करते, we can't at all expect something big, right? So here we need to understand, have a right spark and go through that. अगर ये right spark अगर मिल जाता है तो definitely काफी प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो सकते हैं। अभी चलते हैं टेक्निकल चीज की तरफ। Everyone is asking, there is no job in electrical, there is no job in electrical, there is no job in electrical. Fine. So I hope आपने एक मूवी देखी होगी, अक्षय कुमार एंड परेश रावल, Oh my God movie was there. So there is one famous dialogue in that movie that Akshay Kumar always tell कि जो जिस तरह से जो भक्त होते हैं वो भगवान के बिना अधूरे हैं, राइट? वैसे ही भगवान भी भक्त के बिना अधूरा होता है, अंडरस्टूड? यहाँ पे अगर आप भगवान की जगह रखे तो आप इंडस्ट्रीज को रख सकते हैं और भक्त की जगह रखे तो आप ऐसे एम्प्लॉय रख सकते हैं, राइट? सो अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो कि जिस तरह से हम ऐसा बोलते हैं कि हमें जॉब्स नहीं मिल पा रहे, हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही, एग्जैक्टली इन द सेम वे हमारी इंडस्ट्री भी रो रही है। उनको भी एक सच्चे भक्त की जरूरत है, उन्हें भी एक सच्चे एम्प्लॉय की जरूरत है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? आप बस कॉइन का एक साइड ही देख रहे हैं, आप उसका दूसरा साइड नहीं देख रहे, और ये उसका प्रूफ है। इंजीनियरिंग टैलेंट शॉर्टेज, सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करती है टू गेट द करेक्ट एम्प्लॉय। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में ऑलमोस्ट 60% ऐसी वैकेंसीज है जो ओपन ही रह जाती है, वो क्लोज ही नहीं हो पाती, इतना ज्यादा शॉर्टेज हमारे ब्रांच में। Everyone is asking about computers, mechanicals, material, operations, industrial engineering, many things are there जहां पे लोग जाना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल में जॉब्स का प्रॉब्लम चल रहा है। ये हम लोग बस एक अपने साइड से कंसिडर करते हैं, राइट? लेकिन हमसे ज्यादा तकलीफ में इंडस्ट्री है एक्चुअली, दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर एक्टिव पीपल। तो 60% जगह जो है वो वैकेंट रह जाती है, वो क्लोज ही नहीं हो पाती कभी। तो कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे, अंडरस्टूड? कुछ तो गलत हो रहा है। तो एग्जैक्टली क्या गलत हो रहा है इसी को हम लोग और डिटेल में जानेंगे। तो उससे पहले मैं एक चीज आपको शेयर करना चाहूंगा कि अभी भी इतना बताने के बावजूद भी अगर अभी भी किसी को डाउट है कि देयर इज नो स्कोप इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आई एम शेयरिंग अ लिंक विथ यू, राइट? आई एम शेयरिंग अ शॉर्ट लिंक विथ यू। I hope you are able to see my screen. I'm sharing the screen through chat box. तो किसी को भी अगर कोई भी डाउट है अपने ब्रांच से रिलेटेड, दैट ये जो ब्रांच है अभी भी स्कोप नहीं लग रहा, कुछ नया नहीं दिख रहा है, हम लोग आईटी में चले जाते हैं, वहां पे अच्छा स्कोप है, ग्रोथ भी है, तो एक बार सिर्फ समय निकाल के जस्ट गिव योर 5 minutes एंड रीड दिस ब्लॉग। जस्ट गिव योर 5 minutes एंड रीड दिस ब्लॉग इन डिटेल। और पढ़ना मतलब सिर्फ रीड करना नहीं होता, उसे समझना भी होता है। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट?
सो प्लीज मेक श्योर ये लिंक आप जरूर पढ़े। अगर आपके मन में 1% भी डाउट है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करके मेरा स्कोप कहाँ है या नहीं है, राइट? थैंक यू सो मच। So basically, we will move towards our session. So this is the problem with the industries also. तो हम लोग कॉइन का सिर्फ एक साइड ही देख रहे हैं। Exactly, we are not understanding कि industry are more actually having facing the problems. तो ओपन पोजिशंस जो है वो इलेक्ट्रिकल में हमसे ज्यादा है अदर ब्रांचेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे समथिंग इज गेटिंग रॉन्ग, राइट? एंड आई वुड लाइक टू हेल्प यू विद दैट पॉइंट ओनली कि एग्जैक्टली कोर बेसिस पे प्रॉब्लम करते हैं। देयर आर मेनी स्कोप, मेनी अपॉर्चुनिटीज, मेनी थिंग्स आर देयर, लेकिन कोर प्रोसेस में कहाँ पे डिफिकल्टीज जा रही है जहां से हम लोग पिकअप कर पाए, राइट? सो दिस इज द प्रॉब्लम व्हाट इंडस्ट्री इज एक्चुअली लुकिंग फॉर एंड व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग। जैसे होता है ना, लोगों को लगता है कि सच्चा भक्त वही है जो दान धर्म करे, बहुत पैसा दे, भले ही बाहर जाके पाप करे, राइट? बाहर कोई भी पाप कर सकता है, लेकिन दान धर्म किया तो हो जाता है भक्त। तो ऐसा भक्त नहीं होता। एग्जैक्टली इंडस्ट्रीज में भी वही चीज अप्लीकेबल है। आपको वो पढ़ना होगा जो इंडस्ट्री को एक्चुअली रिक्वायर्ड है। अदरवाइज आप कुछ और करते रहेंगे और आपको लगेगा कि ये सही नंबर है, दैट विल बी अ रॉन्ग नंबर। आई होप यू रिमेंबर दिस डायलॉग, अ रॉन्ग नंबर फ्रॉम द बुक एपीके मूवी, राइट? So we need to understand these all steps: technical skills, secondly technological skills, and third one is the employability skills. So I am using a different tool to make this understand. Welcome to the design sector. Here is on the page one. So here we can see the what industry is actually looking for. So we are looking for the three skills over here. First one is technical skills. Second one is technological skills, employability skills. I hope you are able to see my screen. Please acknowledge. Just type Y. Don't waste your time. Just type Y. Okay. Thank you. Thank you, Akhil. Fine. So we are. Thank you, Rajesh. We are looking for three exactly skills. That first one is technical one, second one is technological, and third one is employability skills. So one by one we will look forward for all the skills over here. Technical skills. अभी ये कहाँ से आएगी, right? So technical skills you can acquire through your college curriculum skills. हाँ, तो अभी आप मुझे बताइए, आप में से ऐसे कौन लोग हैं जो अभी भी सोचते हैं कि हम लोग आउटडेटेड सिलेबस पढ़ रहे हैं, हम लोग पुराने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, कुछ नया नहीं है सिलेबस में, कोई बहुत सारी डिफिकल्टीज है? कौन सोचता है ऐसा? आई थिंक एवरीवन इज एक्चुअली हैविंग दैट माइंडसेट कि ऐसा ऐसा होता है, इसलिए हम लोग मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते, इसलिए हम लोग जॉब नहीं ले पाते। कंप्लीटली रॉन्ग कंसेप्ट एंड दिस इज कंप्लीटली अ मिथ। का इतिहास उठा के देख लीजिए और आज भी देख लीजिए, स्टिल देयर आर सेम सब्जेक्ट्स एक्चुअली गेटिंग इम्प्लीमेंट। एंड इवन दो अगर हम लोग एक सिस्टम पे एक्सेप्ट भी कर ले कि हाँ चलो सब्जेक्ट अगर पुराने हो गए, लेकिन पुराने सब्जेक्ट के साथ भी क्या हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या हमें पूरा नॉलेज है उन सब्जेक्ट्स का भी? नो, right? So I hope you understand this thing. Instead of blaming stopping this blaming game, we need to understand college curriculum is the having highest priority to understand this technology. जब तक आप वो कॉलेज करिकुलम के थ्रू नहीं जाएंगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। कैन एनीवन टेल मी हम लोग कितने सब्जेक्ट्स एनकाउंटर करते हैं इंजीनियरिंग में पूरे एक सेमेस्टर मिला के? कितने सब्जेक्ट्स? प्रोबेबल नंबर भी चलेगा, नॉट एग्जैक्टली आई रिक्वायर्ड। कैलकुलेशन मत कीजिए, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 आप 46 ही बोलेंगे, सॉरी 48 ही बोलेंगे। 40 सब्जेक्ट्स, ऑलमोस्ट 40 प्लस सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, राइट? 40 प्लस सब्जेक्ट। कैन एनीवन गेस कि अगर कल मेरा इंटरव्यू है तो ये 40 सब्जेक्ट्स मैं एक दिन में कर सकता हूं? इज इट पॉसिबल? एक दिन में जो 4 साल में नहीं हो सका वो एक दिन में हमें करना है। इज इट पॉसिबल? फिर भी हम लोग इंटरव्यू के पहले दिन पूरा ग्रंथ लेके बैठ जाते हैं, जैसे कोई हम ब्रह्मासी, ऐसा लगता है लोगों कि एक दिन में सब हो जाए। जो 4 साल में नहीं हो पाया वो एक दिन में कैसे होगा, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि इसमें स्प्लिट करने पड़ते हैं। वी नीड टू हैव सम प्रॉपर प्लानिंग टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, राइट? सो वी आर एनकाउंटरिंग 40 प्लस सब्जेक्ट इन इंडस्ट्रीज एंड इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल कि हम सभी के सभी सब्जेक्ट समझ पाए या फिर उसमें मास्टर कर पाए, right? So here I have sorted out some things for you people, right? तो उसके पहले मैं टेक्नोलॉजिकल स्किल्स के बारे में आपको आइडिया देना चाहूंगा, उसके बाद में इंटरनेट, right? तो यहाँ पे we need to understand that 5 subjects that I have listed for you. I hope you are able to see my screen. Electrical machines, electrical system design. शायद आपको EMD सब्जेक्ट था, electrical machine design was the subject in the 3rd year.
Then power system, control system, and switchgear and protection. Almost, almost 60% of job related to electrical industry you can acquire through this, mastering these subjects only. There are many subjects. I am not denying the importance of that subjects also. Even power electronics is there. Apart from that, many subjects are there, right? I completely understand. Might be there are some lecturers who बोलेंगे कि शायद ये subjects importance नहीं है क्या? There are definitely, but here we are actually according to design sector we are targeting these subjects, right? Because this is the essential element of electrical engineering. That's why I am targeting these subjects only. Definitely, no doubt, other subjects also that important. But as far as this technology is concerned, these subjects are very, very important. And almost 60 to 70% of job you can acquire just having excel in these subjects only, right? और देखने में काफी आसान है, लगते तो पांच ही है, लेकिन मशीन्स में भी मशीन 1 and 2 है, पावर सिस्टम में, कंट्रोल सिस्टम में 1 and 2 है. And switchgear is the बाप of all the subjects. You won't understand it, but it is actually. अकेला switchgear जितना कर सकता है आप लोगों के लिए, उतना शायद ये 4 subjects भी ना कर पाए, right? So you need to understand one thing. These 5 subjects have highest priority in this sector. अगर आपको इसमें एक्सेल करना है तो ये सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंस भी उतना ही है. तो just make sure, I would like to clarify one thing only with you guys. Please don't underestimate your subject, right? Please don't underestimate, because I know the calculation of you guys. I will tell you what calculation you are having in your mind, because I also belongs to RTM, so I know हम लोग किस तरह के कैलकुलेशन करते हैं. तो आई होप कि बहुत सारे लोग एग्री भी करेंगे इस कैलकुलेशन से. किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, ये कैलकुलेशन तो सभी का होता है. एग्जाम को पास करने के लिए लगते हैं 40 मार्क्स, राइट, आउट ऑफ 100. सो इसको अगर मैं स्प्लिट कर देता हूँ 100 को, तो 20 प्लस 80, तो ये 20 होता है इंटरनल और 80 होता है सब्जेक्ट्स, राइट. अभी 20 में से कॉलेज शायद मिनिमम अगर दिया तो सिर्फ 15 देंगे, अगर ज्यादा दिया तो 19 या 20 देंगे, राइट. सो 15 तो हमें कम से कम मिल ही जाएंगे. अभी बचा क्या, सिर्फ 25 तो लेने हैं 80 में से. और हियर वी आर कंडक्टिंग द CBS, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम. और क्रेडिट बेस्ड सिस्टम के हिसाब से हर यूनिट को पढ़ना जरूरी है. तो अगर मिनिमम 4 यूनिट भी अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो 4 यूनिट के हिसाब से 25 तो हम स्कोर कर ही लेंगे. दिस इज द कैलकुलेशन वी आर एक्चुअली हैविंग, राइट. मतलब वो जो बचे हुए 2 यूनिट्स है, अगर उसी पे ही कोई इंटरव्यू आता है या फिर उसी कोई क्वेश्चनिंग होता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, फाइन. कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, हमें चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि पास ही तो होना है सबसे पहले, राइट. हाउ मेनी ऑफ हैविंग दिस कैलकुलेशन? कितने लोगों के दिमाग में ये कैलकुलेशन होता है? आंचल सेड यस. एनीवन? अखिल यस. और कोई है जिसके मन में ऐसे ही कैलकुलेशंस होते हैं? रहमान यस. एवरीवन विल एग्री विद मी, राइट. सो ये तो हमारा कैलकुलेशन है ना कि 15 तो मिल ही जाएंगे, तो 25 ही तो लेना है. तो ये जो जंग है वो एक्चुअली वो है ही नहीं, वो 80 में से 25 कैसे लेना है उसकी जंग है, राइट. और इसी के प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग इसको निग्लेक्ट कर लेते हैं. सो जस्ट मेक श्योर, आज आप शायद अच्छे मार्क्स भी ले ले, अच्छा स्कोर भी कर ले, लेकिन जब तक इन सब्जेक्ट्स का नॉलेज नहीं आता, यू विल डेफिनेटली गेट स्ट्रगल विद दिस इंडस्ट्री, राइट. जस्ट मेक श्योर कि इवन दो आई एम नॉट हैविंग आइडिया कि एग्जैक्टली आप विच कौन से पैटर्न को फॉलो करते हैं, जस्ट मेक श्योर सब्जेक्ट है द हाईएस्ट प्रायोरिटी, उसको प्लीज इग्नोर मत कीजिए. आज भले इग्नोर कर रहे हैं, आगे जाके आपको वही काम में आएगा. एंड जस्ट मार्क माय वर्ड्स, आगे जाके आप उन्हीं पन्नों को पलटेंगे जिनको आपने एक्स्ट्रा बोल के छोड़ दिया था. ट्रस्ट मी गाइस, मैं बहुत ज्यादा पुराना पास आउट नहीं हूँ. आई जस्ट पास आउट इन 2015, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड मी. इतना ज्यादा पुरानी चीजें नहीं है, बिकॉज आई वाज द ओनली गाय हु फेस द CBS पैटर्न एंड ओल्ड पैटर्न आल्सो. तो हमको पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट, राइट. So we need to understand. So how many of you now actually understand the चीज है, काफी इंटरेस्टिंग. दिस इज द एक्स्ट्रा करिकुलम स्किल्स belongs to technical
And employability skill is what? Extracurricular skills regarding to soft skills. Or rather, I can say it as a life skills, right? So what is the extracurricular skills? Curriculum में तो हमने subjects को देख लिया, लेकिन ये extra में क्या आता है? And one mindset we all students are having. I am also considering myself as a student only. That's why I am referring as a we. We all students are having the same mindset regarding the word extra. Extra मतलब something bonus, right? Everyone consider having this mind. Extra मतलब bonus. मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला, राइट? मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो एग्जैक्टली ना, होता यही है हमारे साथ जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं. तो ये नाम ही एक्चुअली मुझे गलत लगता है, एक्स्ट्रा करिकुलम. व्हाई वी आर कंसीडरिंग दिस एज एक्स्ट्रा, जबकि मल्टीनेशनल कंपनीज हैविंग दैट थिंग कि ये मैंडेटरी स्किल्स है. These are the mandatory skills. And why we are adding that extra in front of them? I am having problem with this thing. क्योंकि जब हम लोग एक्स्ट्रा देते हैं ना, तो वी आर हैविंग एज अ स्टूडेंट माइंडसेट कि यार ये एक्स्ट्रा है तो करेंगे, तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता है. लेकिन सब्जेक्ट्स तो एक्स्ट्रा नहीं होते, वहां पे फर्क पड़ता है. इसलिए हम लोग कैसे भी करके पढ़ ही लेते हैं. अंडरस्टैंड द थिंग. सो हैव दैट करेक्ट माइंडसेट थ्रू आउट. ये करेक्ट माइंडसेट होना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड द स्किल्स, राइट? सो टेक्निकल स्किल्स इज देयर. तो ये टेक्निकल स्किल्स ऐसी होती है, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स ऐसी होती है जो हमें आउटसाइड से लेनी पड़ेगी, खुद से पड़ेगी, राइट? जो जैसे मैंने पहला आपको पॉइंट बताया था, पैशनेट. यू हैव टू बी दैट पैशनेट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एनी कोर ब्रांचेस. तो ये तभी होगा, ये जो 5 चीजें आपके सामने लिखी है. Yes, I would like to learn. I would like to understand. I would like to upgrade. I would like to upskill myself. Then only you can go through this, right? So here we need to understand extracurricular skills. Journals are there. Many electrical journals are there जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि what are the current trends, what are the future trends. हम लोग तो अभी भी पुराने जमाने में ही जी रहे हैं. सब्जेक्ट्स को जरूर प्लान करेंगे, लेकिन खुद अपग्रेड नहीं होंगे. Right? I am not targeting you all guys. लेकिन these are the common scenarios. What I have understood. Have patience, Tushar. I will tell you what is the employability skills. One by one we are progressing, right? So extracurricular skills में technical में जो हम लोग चीज देख रहे हैं, that is what called journal. Many magazines are there. I hope अगर आप ऑनलाइन देखते हैं तो बहुत सारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप मैगजीन. There are free subscription. There is no point कि हमें पेड वाला ही लेना है, right? Software skills are there, just like I am actually going to represent this. What are the software skills in later on session? तो यहाँ पे again internships. इंटर्नशिप में तो मैं बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करना चाहूंगा. अगर हमने कोराडी थर्मल पावर प्लांट में 15 दिन स्पेंड किए, या फिर 25 दिन स्पेंड किए, या फिर हमने अजनी लोको शेड में अगर 10 दिन स्पेंड किए, हो गई हमारी इंटर्नशिप. हाउ मेनी एग्री विथ मी? हमारी इंटर्नशिप सिर्फ ये 2 नाम के इर्द गिर्द ही घूमती है, राइट और रॉन्ग? अजनी लोको शेड एंड थर्मल पावर प्लांट, दैट्स इट. Many people are actually having this mindset only. Internship करनी है तो यही करनी है, right? So please understand, internship वहां पे भी की जा सकती है जहाँ पे आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज मिले, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, जहाँ पे ऑपरेशंस हो, मेंटेनेंस हो. You need to understand that skills, right? ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पे एक ही जगह है, क्योंकि आउटकम मिलना बहुत जरूरी है, राइट? सब्जेक्ट्स आर देयर, लेकिन सब्जेक्ट्स के अलावा आपने एक्स्ट्रा क्या किया है, अगर ये आपके रिज्यूम में मेंशन होता है, तो यहां से आपका इंटरेस्ट लेवल शो किया जाता है कि एग्जैक्टली व्हाट यू आर हैविंग. कैन एनीवन टेल मी, इंजीनियरिंग में 4 साल की इंजीनियरिंग में ऐसी कौन सी चीज है जो स्टूडेंट खुद अपनी मर्जी से चूज करते हैं, यूनिवर्सिटी उनको नहीं देता या कॉलेज उनको नहीं देता, खुद की मर्जी से सिलेक्ट करते हैं? कैन एनीवन टेल मी दैट सिंपल आंसर? यू ऑल बिलोंग्स टू फॉर फाइनल ईयर, राइट? तो आपको शायद पता ही होगा. इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, इंटर्नशिप, नो. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यस, प्रोजेक्ट. थैंक यू निखिल. प्रोजेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 40 सब्जेक्ट जो हम लोग ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चॉइसेस के थ्रू आते हैं, राइट? या फिर मैंडेटरी थ्रू आते हैं, और या फिर इतनी वेराइटी भी चॉइसेस भी नहीं हो पाती. लेकिन प्रोजेक्ट इज द थिंग, वहां पे आपको 100% फ्रीडम है कि यू कैन चूज बाय योर ओन कि एग्जैक्टली हमें कौन सा प्रोजेक्ट लेना है. तो एक्चुअली आपको भी जब आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू के समय में जस्ट मेक श्योर कि आपका जो प्रोसेस चल रहा है वो इस तरह से मोल्ड हो कि इंटरव्यू प्रोजेक्ट की तरफ चला जाए. बिकॉज आप सब्जेक्ट पे अगर अलाउ करेंगे इंटरव्यू को सवाल पूछने के लिए, वो दिन भर पूछता रहेगा और आप थक जाओगे आंसर देते देते.
अंडरस्टूड। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट में बताते हो तो प्रोजेक्ट इज द ओनली थिंग जो आपने खुद से की है, खुद से डेवलप की है। हाँ, शायद कुछ लोग खरीद के भी लेके आते हैं, भले ही अगर खरीद के भी लेके आए, लेकिन नॉलेज तो रख सकते हैं एटलीस्ट कि उसके पीछे क्या माइंडसेट है, क्या कॉन्सेप्ट्स है, अगर उसके रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स रिलेटेड टू दैट प्रोजेक्ट, मेनी थिंग्स आर देयर यू कैन प्रिपेयर बाय यू, राइट। सो जस्ट मेक श्योर कि अंडरस्टैंड करना है कि ये प्रोजेक्ट का वैल्यू कितना ज्यादा है हमारे रिज्यूम में, क्योंकि इंडस्ट्री इज एक्चुअली लुकिंग फॉर दैट थिंग। सब्जेक्ट्स तो उनको भी पता है आपने किस तरह से पास किए हैं, राइट, लेकिन ये प्रोजेक्ट का वैल्यू सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है। तो जस्ट मेक श्योर ये एक्स्ट्रा स्किल्स, करिकुलम स्किल्स जो है टेक्निकल, कि इसके थ्रू ही आएगी। These are the sources through which you can acquire the skills, right? And very very important, और मेरी लिस्ट में इन तीनों के अलावा, इन तीनों में से टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयबिलिटी में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में इस स्किल्स को देना चाहूंगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, दैट इज व्हाट कॉल्ड सॉफ्ट स्किल और लाइफ स्किल्स, राइट। क्योंकि ये टेक्निकल स्किल, टेक्नोलॉजिकल स्किल शायद 6 महीने 1 साल में रिजल्ट दिखाएगी, मतलब दिखाएगी ही, देयर इज 100% चांसेस एंड गारंटी कि दिखेगा ही रिजल्ट। लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 1 दिन 2 दिन या 1 साल में नहीं, अगर वो आनी है तो जल्दी भी आती है, नहीं तो नहीं भी आती। सो इसमें एग्जैक्टली ऐसा है क्या, ये चीज, बिकॉज ये जो चीजें है ना, ये जो आपको स्टार्टिंग में दिख रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, दिस इज नॉट डिपेंड ऑन योर नॉलेज, दिस इज डिपेंड कि आप कितने टफेस्ट सिचुएशन को फेस कर चुके हो आपकी लाइफ में, जहां पे आपने खुद से प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, जहां से आपने खुद से डिसीजन लिया है। बिकॉज दिस इज द मोस्ट लाइकली एंड डिजायरेबल स्किल्स ऑफ द इंडस्ट्रीज। वो चाहते हैं कि उनका कैंडिडेट ऐसा हो जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग जैसी चीजें आए, एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, राइट। तो जस्ट मेक श्योर कि जब आप सॉफ्ट स्किल की बात कर रहे हो तो नॉट अ कम्युनिकेशन स्किल, वो तो एक छोटा सा पार्ट है, या फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन, दैट इज ऑल्सो सिंगल बिट ऑफ थिंग, ये तो एक बहुत छोटी सी चीज है। इसके अलावा भी देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज व्हाट कॉल्ड दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स। योर पर्सनैलिटी शुड बी लाइक यू शुड इन्फ्लुएंस पीपल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। कितने लोग एक्चुअली करिकुलम में बात करते हैं स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट की, चलो टाइम मैनेजमेंट तो चलो ठीक है, वो तो बहुत लोगों से इग्नोर हो जाता है, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट, इजंट इट ग्रेट कि एक 4 मल्टीनेशनल कंपनी जिसके साथ हमने सर्वे किया था, वो कह रही है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी टॉपिक इन आवर करिकुलम, और हम लोग उस पर ध्यान भी नहीं दे पाते, राइट। बिकॉज ऑफिस में ऐसी सिचुएशंस आती है, वैसे प्रॉब्लम्स आते हैं जहां पे आपको फेस करना होता है, आपको स्ट्रेस को मैनेज करना होता है, लेकिन हम लोगों के पास उतना पेशेंस ही नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग टाइप कर देते हैं अपना रिजिग्नेशन लेटर कि नहीं करना है, चलो निकल जाते हैं, right? So we are not able to handle that stress. I am not saying कि everyone is having, लेकिन these are the actual problem with the industries कि वो लोग ये skills चाहते हैं आपने, and yes, none other than MS Office। अगर हमने 10th क्लास में MS CIT किया है, मतलब हमको MS Office आता है। How many of having this rule? अगर हमने 10th क्लास में MS CIT किया है, मतलब हमको MS Office completely आता है, जो इंडस्ट्री रिलेटेड है वो पूरा। Excel having the highest priority guys, please make understand this, बहुत ज्यादा जरूरी है एमएस ऑफिस। हम लोग जिस तरह से, अगर आपको सिर्फ एमएस वर्ड पर टाइप करना आता है, फॉन्ट के साइज कम ज्यादा करना आता है, दैट रियली डजंट मीन कि आपको एमएस ऑफिस आता है। जस्ट मेक श्योर एमएस ऑफिस इज बियॉन्ड दैट थिंग, इवन दो हियर आई एम यूजिंग दिस यूटिलिटी, माइंड मास्टर नाम का मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं। कितने लोगों को एक्चुअली ये चीज पता भी थी कि माइंड मास्टर जैसी ऐसी चीज भी हम लोग को यूज कर सकते हैं? वी डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन जस्ट इमेजिन अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं, वहां पे ऐसी कोई चीज यूज नहीं की जाती, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप प्रेजेंट कर सकते हैं खुद को, तो जस्ट मेक श्योर कि ये स्किल्स या ये टूल किसी ने देखा नहीं है, एंड आई एम यूजिंग दैट टूल। कितना इंटरेस्टिंग लगेगा, आपका जो प्रेजेंटेशन है बाकियों से अलग दिखेगा, अंडरस्टूड। तो जस्ट मेक श्योर कि इस तरह से एक्सपेरिमेंटल जो माइंड्स है ना, तो एमएस ऑफिस बिलोंग्स टू मेनी थिंग्स, इसमें बहुत सारे अच्छे टूल्स है, और ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी थिंग इंडस्ट्री डिमांड करती है। So just understand this thing कि ये तीनों जो skills मैंने आपको यहाँ पे शो की, is having the very important priority in this industry. Technical, technological, employability. How many of you agree with me? Just type agree. अगर आपको लगता है कि ये तीनों skills बहुत ज्यादा important है, जो आपको शायद पहले पता नहीं थी, या फिर उसको split करके नहीं पता था, right? Thank you, Akhil. Thank you, Bhageshri, Raju, Chetan, Tushar. Thank you so much. Thank you, Archie. Great. There are 130 plus candidates are there. I am having only 10 replies, guys. बाकियों को समझ नहीं आ रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम है? Am I audible to all of you?
I'm expecting a reply from you guys because I'm only for you people. I'm just trying to help you out with this. And I want that day to be here like जब electrical engineer will be on the top of the industry. जहाँ पे लोग समझे और इम्पोर्टेंस समझे हमारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच का कि कितना इंपॉर्टेंट है. आई एम टेकिंग केयर ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं चाहता हूँ कि ये चीज हो कि पीपल विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. जिसको लोग अच्छा इलेक्ट्रिकल है चलो ठीक है, अच्छा सीएस वाला है क्या बात है, राइट. आई जस्ट डोंट वांट दैट डेज. आई वांट माय डेज बैक जब मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्राउडली कह सकूं. आज भी कहता हूं, नो प्रॉब्लम विद दैट. लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारी ब्रांच को बदनाम करने में लगे कि कोर ब्रांच है तो स्कोप नहीं है एंड ऑल. दीज आर द ओनली गाइज वे आर हैविंग डिग्री विद द 40%. आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ द परसेंटेज, लेकिन ये ऐसा ही प्रॉब्लम है, राइट. जस्ट मेक श्योर यू आर द फ्यूचर इंजीनियर्स. जब आप पास आउट होके कॉलेज से निकलोगे, मेनी पीपल विल कम टू यू फॉर गाइडेंस. वो आपसे गाइडेंस मांगेंगे, लेकिन आप वहां पे जो भी गाइड करोगे उसी से डिसाइड होगा कि फ्यूचर में लोग क्या करेंगे. क्योंकि अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 130 पीपल आर देयर. अगर ये 130 पीपल अगर अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं इसके रिलेटेड, सो मेनी थिंग विल एक्चुअली गेट चेंज, राइट. बहुत चीजें बदल सकती है जो अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पे गलतियां हो रही है एंड वी नीड टू सॉर्ट इट आउट बाय आवर ओन, राइट. सो दीज आर द स्किल्स, टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल, ये इंडस्ट्रीज को चाहिए. अगर आप इसमें काम करते हो तो ही हमें ये वैल्यू मिल पाएगी. Now, with that note, I would like to introduce myself. My name is Mr. Rakshay Jain. I started my career as electrical engineering, passed out in 2015 from KDK College, and later on handled many design engineering projects based on the AutoCAD and MATLAB. Then also working as a corporate trainer for the multinational companies available in Nagpur and outside of the Nagpur. इसके अलावा आई एम ऑल्सो वर्किंग एज ए फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट वर्कर. तो जहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग करते हैं, सिंगल लाइट डायग्राम डिजाइन, कैलकुलेशन, लोड कैलकुलेशन एंड ऑल. So we are dealing with all the things and I'm having a center named as Livewire Lighting Skills and I'm taking care of this industry. So इसके अलावा we are also promoting the other technologies like artificial intelligence, data science, machine learning. So यहाँ पे मैं आपके लिए एक चीज और भी एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा. Sorry, is my voice audible now? Tushar? Anyone can acknowledge, no problem. Is my voice audible now? Sorry, I actually misplaced my speaker. Right, no problem. Thank you. So this is the thing, we are promoting the thing. तो यहाँ we need to understand one thing कि यहाँ पे इंटीग्रेशन को समझना है आपको, राइट. क्योंकि हम लोग जब पाइथन की बात करते हैं, बाकी चीजों की बात करते हैं, वी आर एक्चुअली इग्नोरिंग दैट थिंग. ऐसा कि ये कोडिंग है हमारे काम करनी है, देयर इज नो पॉइंट. अगर आज भी अगर आप पावर सेक्टर में जाए तो वहां पे पाइथन की कोडिंग का यूज करके भी पावर सेक्टर्स के वैल्यूज को क्लियर मेंटेन किया जाता है, बिजनेस प्लान्स बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज के लिए. जस्ट मेक श्योर कि अभी जो आने वाली जनरेशन है या फिर जो भी फ्यूचर इंजीनियर्स है, हमें सिर्फ 1 या 2 साल तक नहीं सोचना है, अगले 10 साल, अगले 15 साल तक क्या चीजें रहेगी ये हमें अंडरस्टैंड करें, राइट. सो जस्ट मेक श्योर कि आपको नए फ्यूचर के लिए इंटीग्रेशन जरूरी है. इट इज नॉट लाइक मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं तो मैं सिर्फ वायर के साथ ही वर्क करूंगा. फ्रीलांसिंग मीन्स एग्जैक्टली मतलब हम लोग ओपन टू वर्क है, राइट. फ्रीलांसर लाइक सम पीपल, सम इंडस्ट्री भी हायर अस. इंडस्ट्री हमें हायर करेगी, कोई प्रोजेक्ट देगी, हर हमें उसको करना है. तो फ्रीलांसर जस्ट चार्ज विद अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस. फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑटोकैड का डायग्राम लेता हूं तो आई चार्ज 2000 पर आवर. तो ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे आवर्स के हिसाब से वर्क चलता है. तो फ्रीलांसिंग वो अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग इज सिंपल थिंग कि आपको कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं और आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, जस्ट एज अ थर्ड पार्टी यू आर वर्किंग फॉर द कंपनी, राइट. सो विद दैट नोट आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विद यू, जहां से अगर आपके मन में एक भी पॉइंट है या फिर एक भी डाउट है, यार आपको लगता है कि सब्जेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी भी अगर वो चीज या वायरस आपके दिमाग में है, तो ये पॉइंट से मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा. Do you know these are the skill set required by the electrical industries? Overview of EPC industry जो मतलब कंस्ट्रक्शन, ठीक है. इसके बाद में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, डिजाइन बेसिस, एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड, डेवलपमेंट ऑफ SLD सिंगल लाइन डायग्राम कंट्रोल स्कीमेटिक्स, सिलेक्शन, साइजिंग, प्रोटेक्शन, स्पेसिफिकेशन, डेटा शीट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, केबल साइजिंग, केबल रूटिंग, केबल सिलेक्शन, एलिमिनेशन एंड अर्थिंग. अभी आप बोल रहे हो कि सर स्क्रीन पे तो है, क्यों पढ़ रहे हो आप, हम लोग पढ़ सकते हैं. आप वो बताइए ना जो हम नहीं पढ़ सकते, राइट. हम जानते हैं कि स्टूडेंट एक्चुअली क्या माइंडसेट रखते हैं. वी नो व्हाट यू कैन थिंक एट व्हाट टाइम, राइट. सो जस्ट अंडरस्टैंड
यहाँ पे इन सभी पॉइंट्स को रेट करने का कुछ एक्चुअली इंटेंशन है मेरा। तो मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ इसके ऊपर, इनमें से जितने भी चीजें अभी मैंने यहाँ पे लिस्ट की है, इल्यूमिनेशन, केबल साइजिंग, एंड यस दिस ऑल्सो शॉर्ट सर्किट एनालिसिस, लोड फ्लो एनालिसिस, मोटर स्टार्टिंग स्टडी एंड सबस्टेशन स्विच गार्ड डिजाइन, ये जितनी भी चीजें आपको लिस्ट की है, कैन एनीवन टेल मी ये आपके सब्जेक्ट्स में है या नहीं? जस्ट टाइप यस और नो, वाई और एम, आपके सब्जेक्ट में है या नहीं है? आकाश सेज यस है, निखिल सेज यस, पराग, आचल, राजू, सचिन, दीक्षा एग्री। सो आई होप सभी लोग यहाँ पे एग्री करते हैं कि ये सभी चीजें हमारे सब्जेक्ट में है, राइट? तो हम लोग क्यों फिर से बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या आपको लगता है कि जहाँ पे लोग नया घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, रेसिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल हो या बिल्डिंग्स हो, वहां पे इल्यूमिनेशन नहीं की जाती? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। यूडब्ल्यू सभी लोग पढ़ते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, जहाँ पे यूटिलिटी के बारे में काफी जानकारी दी गई है डिटेल, जो हम एक्चुअली डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं। बाकी छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपके घर की वायरिंग भी अगर आप समझ पाए ना कि एमसीबी कैसे सिलेक्ट होती है, फ्यूज कैसे सिलेक्ट होता है, स्विचेस के साइजेस क्या है, बॉक्स जो स्विच बॉक्स होता है वो कितने डिस्टेंस पे रखा जाता है, ऊपर से जो कंडक्ट वायरिंग चलती है वो कितने डिस्टेंस से चलती है, तो इल्यूमिनेशन में कितने लाइट्स लगती है, राइट? कैन एनीवन, जब हम लाइट खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से या शॉपकीपर से हम लोग क्या पूछते हैं? क्या दीजिए, लाइक कितने, कैसे, क्या पैरामीटर क्या है, लाइट कैसे खरीदा जाता है, क्या पूछते हैं हम लोग? Watt, right? Everyone will ask that. Have you guys heard about lux? Have you guys heard about lux? Lumens per watt. Great. Now tell me, जब भी हम लोग लाइट खरीदते हैं, बहुत बार होता है कि ये दो अलग अलग कंपनी का होता है, राइट? दो अलग अलग कंपनी के लाइट्स होते हैं, एक का जो वैटेज है वो 8 वैट होता है, दूसरे का भी 8 वैट होता है, लेकिन अलग अलग कंपनी के होने की वजह से एक का इल्यूमिनेशन या फिर जो लाइट जो प्रकाश बोलते हैं हम जिसको, राइट, इल्यूमिनेशन ज्यादा होता है एक का और एक का कम होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप बोल रहे हो 8 वैट, तो 8 वैट है तो सेम ही देना चाहिए ना, लेकिन जो ब्रांडेड होते हैं उनका लाइट जो है वो इल्यूमिनेशन वो ज्यादा होता है, इसका कम होता है। एग्जैक्टली क्या है? क्वालिटी, लक्स कम ज्यादा होने की वजह से, राइट? ग्रेट, राइट, अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ पे इंडस्ट्री चाहती ही नहीं है कि हम समझे इस कंसेप्ट को कि 8 वैट का क्यों लेना है, अगर लेना है तो लक्स हम समझ पाए। एक्चुअली जितने स्टैंडर्ड्स लाइट मैन्युफैक्चरर्स है वही वो एक्चुअली करते हैं, वो एक्चुअली लक्स यूनिट लिखते हैं, अदरवाइज लोकल ब्रांड में तो लिखा भी नहीं होता लक्स, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि आप समझे इस चीज को, राइट? सो जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप लाइट खरीदे तो वो चीज जरूर देखें कि लक्स इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वैटेज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, वैटेज तो उतना ही रहने वाला है, 8 वैट तो 8 वैट, लेकिन लक्स है वन इंपॉर्टेंट। तो यहीं से तो हमारी बेसिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है ना। तो जस्ट मेक श्योर कि आपके जो सब्जेक्ट्स है ना, आप 4 सालों में पढ़ते हो, तो दिस आर द स्किल सेट। जैसे वहां पे मैंने सब्जेक्ट्स के नाम लिखे थे, लेकिन यहाँ पे मैं स्किल सेट को कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ लोड, एस्टिमेशन ऑफ लोड बहुत जरूरी है। नया बिल्डिंग बनता है, नया कमर्शियल बिल्डिंग है या फिर मॉल्स है, ये सभी चीजें वहां पे आने ही वाली है, राइट? जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, हम लोग लाइफस्टाइल जिस तरह से चेंज करते हैं तो लोड बढ़ रहा है दिन ब दिन, एरियाज बढ़ रहे हैं, तो देयर विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ लोड ना, और लोड की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे रोड्स बनेंगे, स्ट्रीट लाइटिंग आएंगी, ट्रांसफॉर्मर्स डिजाइन किए जाएंगे, सबस्टेशन डिजाइन किए जाएंगे, मेनी थिंग विल बी देयर। तो ये हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो डेफिनेटली वहां पे स्कोप क्रिएट होगा। तो आई नो यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आई नो आप आपकी ब्रांच को सही तरीके से जानते हो, मैं बस आपको एक नया प्रोस्पेक्ट दे रहा हूँ आपकी ब्रांच को बेसिक लेवल पे समझने का, कि एग्जैक्टली व्हाई आई शुड बी प्राउड इनफ ऑफ इलेक्ट्रिकल, बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, राइट? So according to skills demanded by the industry, these are the job available in the industry, right? Skill driven and degree driven, right? तो ये जो डिग्री ड्रिवन जॉब्स हैं, ये आपके टेक्निकल स्किल्स के थ्रू आएंगे, जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स है उसके थ्रू स्किल ड्रिवन आएंगे, और इन दोनों का यूज करके विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपको वो एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए कि आपकी स्किल्स का इंडस्ट्रीज को क्या बेनिफिट है। बहुत बार ऐसा होता है कि 9 पॉइंटर, 9.5 पॉइंटर, 9.8 पॉइंटर लेके हम लोग एकदम टॉप पे बैठ जाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेन, व्हेन इट कम्स टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, यू गेट फेल्ड। इंडस्ट्री हैज नो प्लेस फॉर दिस गाइस, ट्रस्ट मी। आई एम नॉट डिनाइंग कि 9 पॉइंटर का इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत मेहनत लगती है 9 पॉइंटर प्लस देने से, लेकिन जब तक आप उसका यूटिलाइजेशन करके इंडस्ट्रीज को बेनिफिट्स नहीं दे सकते, योर स्किल्स आर नॉट एट ऑल हैविंग दैट यूटिलाइजेशन।
अंडरस्टूड? तो जस्ट मेक श्योर आपको बात करना आना चाहिए, आपको प्रेजेंटेबल चीजें आनी चाहिए, आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, सब चीजें जस्ट लाइक दैट। समझ लीजिए आपने, हम लोग जैसे अपना बायोडेटा देते हैं ना, रिज्यूमे देते हैं हम लोग, कंपनीज को रिज्यूम देते हैं, तो जब तक आपका रिज्यूमे में आप अच्छी तरह से मेंशन नहीं करोगे आपके स्किल्स, देयर विल बी नो पॉइंट। अंडरस्टूड? सिंपल शादी के लिए भी बायोडाटा देना होता है, और जब तक आपका बायोडाटा नहीं पसंद आता तब तक लड़की वाले या लड़के वाले आपको कॉल ही नहीं करते। अंडरस्टैंड? यहाँ पे तो हम लोग कंपनी की बात कर रहे हैं, तो आप पहले नहीं जाते इंडस्ट्रीज के पास, आपका रिज्यूम पहले जाता है। तो रिज्यूमे मेकिंग ऑल्सो हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी। आप कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा स्किल्स आपके पास हो, लेकिन अगर आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते रिज्यूमे में, यू विल डेफिनेटली गेट स्ट्रगल, राइट? सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल गाइस, प्लीज वर्क ऑन योर रिज्यूमे। ग्रामेटिक मिस्टेक्स ना हो, आपका ग्रामर स्पेलिंग्स करेक्ट हो, आपका नाम, आपका फोटोग्राफ उस पर अच्छा हो, प्रोफेशनल। हीरो वाली फोटो नहीं लगानी है, राइट? हीरो वाली फोटो नहीं लगानी है, प्रोफेशनल लगना है हमें। फेसबुक वाली मत लगाइए। आई हैव सीन 300 से ज्यादा इंटरव्यू ले चुका हूँ ये 5-6 सालों में। पीपल आर एक्चुअली हैविंग दिस, जींस पहन के आ जाते हैं इंटरव्यूज के लिए। व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म वी आर एक्चुअली शोइंग? अंडरस्टूड? तो जस्ट मेक श्योर एटलीस्ट इंप्रेस होने तक तो प्रोफेशनल बिहेव कर लो, उसके बाद तो कंपनी अपनी है। Just have patience, Tushar. We are having a lot of plenty of topics to be discussed now. Just we are just initiating the skills. Okay. So these are the jobs available with the electrical industry, and according to this skill set, we are having designed to simulation industries. That is what called AutoCAD electrical, ETAP, PLC SCADA, and MATLAB for electricals. Understand? So we are today targeting all these things कि exactly इन सब जो स्किल सेट है इसको समझने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूटिलाइजेशन हमें करना होता है, राइट? सो आई एम अगेन मूविंग टुवर्ड्स माय ओल्ड टूल। यहाँ पे देखा था, राइट? So the three jobs available. Yes, welcome to the design sector. Welcome to the electrical design sector, right? So being a design electrical design engineer, हमें दो चीजों की जरूरत पहले होती है, राइट? पहली बार तो वो एक क्वालिफाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, जो किसके थ्रू होगा? किसी सब्जेक्ट्स के थ्रू होगा। एंड सेकंड थिंग इज डिजाइनिंग स्किल्स उसमें हो। अब ये डिजाइनिंग स्किल्स कहाँ से आएगी अगर कोई भी सिस्टम को डिजाइन करना है? क्योंकि अगर हम लोग पीएलसी स्काडा की बात करते हैं तो दिस रिफर्स टू द ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज, लेकिन डिजाइन सेक्टर इज समथिंग डिफरेंट दैन दैट, राइट? क्योंकि ये डिजाइन सेक्टर का काम ऐसा है ना, हम घर बैठ के भी कर सकते हैं। वी कैन ऑपरेट ऑन द सॉफ्टवेयर, मैटलैब भी यूज कर सकते हैं, ईटैप भी यूज कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू पेंडेमिक कंडीशन, जहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों के जॉब्स छूट रहे हैं, तो उसका प्रॉब्लम वही है कि जिसका जैसे लोकेशन बेस्ड या फिर साइट बेस्ड वर्क है ना, तो दे आर एक्चुअली गेटिंग स्ट्रगल। और जिनका डिजाइन बेस्ड है वो घर पे बैठ के भी वर्क फ्रॉम होम मॉडल को अप्लाई here, and we need to go through the subjects first and then designing skills. So designing skills, there are three things: AutoCAD electrical, ETAP and MATLAB, right? ये तीनों स्किल्स के बारे में बहुत जरूरी। तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल स्किल्स में ऐसा क्या है, राइट? व्हाई वी नीड टू गो थ्रू दिस? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में ऐसा क्या है? So for that sake we need to understand one thing कि सबसे पहले किसी भी इंडस्ट्री में जब आप जाते हो तो सबसे पहले जो एक्सपेक्टेड यू नीड टू रीड द सर्किट डायग्राम। और जब आप सर्किट डायग्राम को रीड करना समझोगे, जब आप अंडरस्टैंड करोगे सर्किट डायग्राम को, उसके लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट होगी कि आपको सिंबल समझना है, राइट? अगर आप जब तक इलेक्ट्रिकल सिंबल्स नहीं समझते हो तब तक आप इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को भी नहीं समझ पाते। तो एग्जैक्टली आई एम हीटिंग टुवर्ड्स दैट सेम पॉइंट कि लाइक बिफोर ऑटोकैड पहले इस तरह से कुछ काम किया जाता था। एंड आई एम वेरी फीलिंग वेरी मच प्राउड कि द वेरी फर्स्ट टाइम द ब्रांड दैट इंट्रोड्यूस AutoCAD in India, that too in 1988. So our brand was there, CAD Center was there, जिसने इंट्रोड्यूस किया था। And LiveWire is a branch of CAD Center only. So we are having 6 centers around 100 centers around 6 countries. So we are dealing with all the trending technology under
करियर कंडक्ट कर सकते हैं हम। देयर आर प्लेंटी ऑफ नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग्स आर देयर जो अभी भी फिल नहीं हो पाती ऑटोकैड बेस, जस्ट बिकॉज हमारा माइंडसेट इस तरह से है कि हम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। इवन द पॉलिसी सिलेबस हैविंग दिस सब्जेक्ट सेकंड ईयर में, लेकिन हम लोग अभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि कितना इंपॉर्टेंट है। सो कैन एनीवन टेल मी, अ सिंपल क्वेश्चन इज देयर, आई होप सभी लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का इलेक्ट्रिकल में कुछ एप्लीकेशन है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू का? टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, व्हाट वी टेल। क्योंकि जब हम लोग पढ़े थे ना उस समय में, तब किसी ने सोचा नहीं था कि हाँ कुछ है सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है, ये तो बस पढ़ रहे हैं, करिकुलम में है, इसे पढ़ना है। लेकिन क्या, चलो ठीक है, जितने भी लोगों ने अभी तक यस बोला है, क्या आपने, यस चैतन्य भी, तो जितने भी लोगों ने अभी तक पढ़ा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट अब तक किए, क्या आपको कहीं पे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू दिखा? कहीं पे दिखा आपको इतने सब्जेक्ट्स में? Hey guys, are you listening to me? No, नहीं दिखा ना? तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं इसका यूटिलाइजेशन है या नहीं? राइट। सो बेसिकली क्या होता है कि सब्जेक्ट्स हमें जो दिखाते हैं हम बस वही देखते हैं, उसके बियॉन्ड क्या प्रैक्टिकली में चीजें है वो हम लोग दिखाई नहीं चाहते। जस्ट मेक श्योर कि यस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज देयर, लेकिन लेटर ऑन उसका एप्लीकेशन, हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग को जब तक एप्लीकेशन नहीं दिखता ना हम लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते। हम लोग तो अभी भी सोचते थे कि मैट्रिक्स हम लोग क्यों पढ़े, people are still having this question कि अभी भी मैट्रिक्स हम लोग क्यों पढ़े, राइट? सो आई होप एट द एंड ऑफ दिस सेशन you will be clarified with these things, right? So very first tool we need to understand कि AutoCAD and AutoCAD electrical are not the same software. अगर आप यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो you need to learn AutoCAD electrical, not a plain AutoCAD. Plain AutoCAD is utilized by any people who are technical or non-technical, जिसको ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है। लेकिन AutoCAD electrical can be learned by only electrical engineers, क्योंकि बाकियों के लिए वो बस एक खिलौना है, वहां पे अच्छे अच्छे ड्राइंग्स बनती है, अच्छे अच्छे सर्किट्स बनते हैं। लेकिन अगर आपने रेजिस्टर की जगह इंडक्टर लगा दिया तो क्या हो सकता है, एवरीवन नोस, या फिर कैपेसिटर लगा दिया। अंडरस्टैंड? सो जस्ट मेक श्योर AutoCAD and AutoCAD electrical are not the same software, right? So how many of you are interested to see the screen of AutoCAD electrical? Is there anyone interested? Just type I if you all are interested. Just type I. Yes. Thank you. Thank you so much, guys. I'm sharing again my screen with the software. Just acknowledge me. You are able to see. Right. So this is the screen of AutoCAD electrical. So just make sure यहाँ पे जो home tab है, this belongs to plain AutoCAD, right? Line, polyline, circle and all. दिखने में काफी आसान है ये चीज, है ना? दिखने में काफी आसान लगती है, लेकिन जब हम लोग इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स करते हैं ना, तब पता चलता है कि ये बस कोई सर्कल नहीं है, ये कोई रेक्टेंगल नहीं है, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल्स जिससे हम लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें एक्चुअली डिजाइन करते हैं। लेकिन जिस तरह से हमें बताया जाता है ऑटोकैड उस तरह से नहीं, दिस इज मोर एंड फार एडवांस देन दिस थिंग्स, राइट? ऐसे ही कंपनीज इसको यूटिलाइज नहीं करती, राइट? सो जस्ट आई विल गिव सम क्विक एग्जांपल विद यू, आई विल शेयर क्विक एग्जांपल, तब आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑटोकैड, व्हाट इज द डिफरेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑटोकैड एंड ऑटोकैड। सो आई विल कंस्ट्रक्ट अ सिंबल इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। सिर्फ कितने जल्दी समय में बन पाता है आप देखिए। I will construct the symbol of inductor here. I am taking a circle, just copying down again. Yes, so taking the base point and being ortho mode on, designing this thing. चलो, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हम लोग दे देते हैं। ये जो है ये किसी ऑडी के सिंबल की तरह दिखता है, राइट? अभी मैं अगर इसका लोअर पोर्शन ट्रेन कर दूं, इट विल लुक लाइक इंडक्टर। इज इट लुकिंग लाइक इंडक्टर, राइट? प्लीज वाइंडिंग मत बोलना यार, राइट? मैनी पीपल ये तो वाइंडिंग की तरह दिखता है, राइट? इज इंडक्टर एक्चुअली, राइट? सो यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना पड़ा इसे बनाने के लिए, सर्कल 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 सर्कल, ये 2 लाइन कॉपी करनी पड़े, ट्रिम करना पड़ा, राइट? नाउ थोड़ा आगे जाके हम लोग लिखते हैं स्कीमेटिक टैब में, यानी यू कैन सी द आइकॉन मेन्यू। अगर मैं इस आइकॉन मेन्यू को ओपन करता हूं, आई विल गिव द परमिशन ओपन दिस आइकॉन मेन्यू, सी व्हाट यू विल सी नाउ, खजाना,
एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर मुझे कोई पूछे ये क्या है तो मैं तो वही बोलेगा, इट्स अ ट्रेजर, इट्स अ ट्रेजर। क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े सिंबल्स, हेक्टिक सिंबल्स को डिजाइन करने की मेरी जो मेहनत है ना वो बच जाती है। एग्जाम्पल लाइक अभी जैसे मैं समझ सकता हूँ ये पुश बटन है, सी इस पुश बटन को मुझे बिल्कुल डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। इवन यहाँ पे टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आ चुका है, जहाँ की यहाँ पे मुझे टाइप करना होता था, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है मुझे। इवन मैं ये भी बता सकता हूँ इस ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के थ्रू कि ये जो सिंबल्स है इसका लुकअप क्या है। लुकअप इन द सेंस हम लोग जो देखते हैं ना टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, राइट, जस्ट लाइक दिस, सी पुश बटन। तो दिस इज डिफाइंड बाय नेम। जस्ट राइट डाउन एंड नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। इसके थ्रू ही सिंबल्स के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन किया जाता है, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल, राइट। तो सिंबल्स इस तरह से होते हैं, पुश बटन। तो शायद आपने फार्मिंग में देखा होगा, हम लोग ड्यूअल स्टार्टर यूज करते हैं, वहां पे वो लाल कलर की बटन होती है, आपने देखा होगा, राइट, ड्यूअल स्टार्टर में। तो दैट वेयर वी कैन यूज पुश बटन्स, वहां पे कॉमनली यूज किए जाते हैं। वेरी कॉमन एग्जांपल है, यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन देते हैं इसका, राइट। तो हियर यू कैन सी, तो ये जो चीज है यहाँ पे ऑटोकैड इलेक्ट्रिक, ये सिंबल देखिए कितना इजीली बना गया। इवन वायर मल्टीपल बस इज देयर, राइट। हम लोगों को अगर 3 वायर भी बनाने हैं तो वी कैन इजीली डिफाइन, यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं कि हम लोग 3 बार इसको रिपीटेटिव मैनर में, ठीक है। इवन दिस सॉफ्टवेयर इज सो स्मार्ट कि इसको ये भी पता है कि जंपर कब देने या फिर क्रॉस सेक्शन करके वायर ले जाएगा, राइट। सो ये अगर मुझे ऑटोकैड में बनाना होता तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती मुझे। और इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम ऐसा चल रहा है कि इवन तो पीपल आर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर सिंस 10 इयर्स, लेकिन इसकी टेक्निकलिटी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये पीपल अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। इस सॉफ्टवेयर का पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि अगर आप इसको इफेक्टिवली यूज करें तो जो चीज 1 आवर में बनती है वो आप उसको 15 मिनट्स के अंदर भी डिजाइन कर सकते हो। और हियर द डिफरेंस इज, यही पे सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि जब भी आप पीपल के साथ कंपीट करते हैं, आपके कॉम्पिटिटर के साथ कंपटीशन में आते हैं, तो जस्ट मेक श्योर इवन दो अगर आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके पास ये स्किल्स है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो इफेक्टिव ही हो। तो जस्ट मेक श्योर अगर ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती है तो घबराइए मत कि सामने वाला बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है तो ज्यादा ही आता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑटोकैड इज द स्किल्स जहां पे आप फ्रेशर होने के बावजूद भी मास्टर कर सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, मेरा पहला जो स्टूडेंट था ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का, उसका एज 40 इयर्स था, 40 इयर्स, एंड ही वाज माय फर्स्ट बैच ओनली। आई वाज एबल टू जस्टिफाई, ऐसा नहीं है कि जस्टिफाई नहीं किया, लेकिन तब माय माइंडसेट वाज कि ऐसा जरूरी नहीं कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड है तो ये सब स्किल्स कॉमनली आती ही होगी। मेनी पीपल एक्चुअली डोंट नो दिस स्किल्स, राइट। एंड वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग अवर सर्विसेज आउट ऑफ इंडिया आल्सो, तो वहां पे भी सेम स्ट्रगल दे आर एक्चुअली फेसिंग, राइट। तो ये जो स्किल्स है यहाँ पे बहुत सारे एडवांस टूल्स है जिसके थ्रू आप ये सब चीजें कर सकते हैं। इवन सिंगल स्टेप्स में, सिंगल फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मुझे 3 फ्यूजेस चाहिए तो ये फ्यूजेस जो है हम लोग इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये देखिए तीनों के तीनों फ्यूजेस आ गए। अब अगर मैं इन 2 लाइंस को निकाल देता हूं, राइट, प्लीज लिसन टू माय क्वेश्चन, अगर ये 2 लाइन, ये लाइन और ये लाइन, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं, कैन एनीवन टेल मी ये कौन सा सिंबल बन जाएगा, कौन से सिंबल की तरह दिखेगा ये आपके सब्जेक्ट में है सर्किट ब्रेकर, राइट। यही से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है कि लुक लाइक सिंबल्स दिखते हैं, सेम सेम दिखते हैं। फर्स्ट टाइम अगर मैं इस एफयू को निकाल दूं तो लोग इसको सर्किट ब्रेकर ही बोलेंगे, राइट। शाह कुछ डायग्राम्स में इसे रेजिस्टर की तरह भी देखा जाता है, राइट। तो इतनी जो वेराइटी है, ये वेराइटी का बेसिक क्या है, क्या प्रॉब्लम है कि इतना वेराइटी है। तो मैं इसके लिए आपके पीपीटी के पास वापस जाऊंगा, ये है उसका रीजन ही है जॉइंट इंडस्ट्रियल काउंसिल, JIS, IEEE and FPA। सो सिंबल लाइब्रेरी में 2000 से ज्यादा स्कीमेटिक सिंबल्स है और ये सिंबल्स डिफाइन कौन करता है, ये सभी स्टैंडर्ड्स। तो जैसे मैंने स्किल सेट आपकी लिखी थी, उस स्किल सेट में मैंने एक पॉइंट लिखा था, शायद आपने नोटिस किया हो उसे, दैट वाज द पॉइंट, यूज ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स समझने के लिए सिंबल्स के स्टैंडर्ड्स को समझना भी बहुत जरूरी है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए या फिर फोटो लेके रख दीजिए अगर आप लाइक से कर रहे हैं, लेकिन इसको अंडरस्टैंड कीजिए। जॉइंट इंडस्ट्रियल काउंसिल JIS क्या होती है, ये सिंबल्स के स्टैंडर्ड्स है। इससे आपको मदद तब मिलेगी जब आप किसी 60 हर्ट्ज के सिस्टम पे काम करो,
राइट। आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के सर्किट डायग्राम्स पे भी काम कर पाया, राइट। तो जस्ट मेक श्योर कि ये सिंबल्स का इंपॉर्टेंस आपको पता हो और ये सिंबल्स किस तरह से यूटिलाइज। आई होप एवरीवन इज अवेयर विद द IEEE, क्योंकि हम लोग जर्नल्स में पेपर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जेएस या जेएससी के बारे में हम लोग नहीं जानते, राइट। तो ये जो लाइब्रेरी है इसके अकॉर्डिंग ही आपके सिंबल्स डिफाइन होते हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो देखिए NFPA लाइब्रेरी इज देयर, राइट, फायर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आपको सिंबल्स जो है वो लाइब्रेरी के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। इवन दो यू कैन डिफाइन द circuits, complete circuits you can design in the single click. Just see, अगर कोई सर्किट आपको बार बार डिजाइन करना पड़ रहा है, there is no need, just a single click is enough, that's it. अभी इतना बड़ा सर्किट अगर एक्यूरेसी के साथ आप इलेक्ट्रिकल में बनाना चाहेंगे प्लेन, तो यू कैन डिजाइन, इट विल टेक मोर एंड मोर टाइम, 3 hours तो कंप्लीटली लेगा ही लेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंगल क्लिक के अंदर ये सर्किट आपके सामने डिजाइन करके रिप्रेजेंट करें। Even though if you required a wire numbers within this circuit, you can also see. मैंने बस सिंगल क्लिक करके कर्सर छोड़ दिया है, see, आगे वायर नंबर्स ऑटोमेटिकली। जबकि अगर ऐसे अगर 100 वायर्स हो तो मुझे 100 टाइम्स इसको टाइप करना होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। सो इंडस्ट्री को समझिए कि इंडस्ट्री प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देती है, राइट। कम समय में कितना ज्यादा से ज्यादा आप चीज करोगे ना, उतना ज्यादा ये सब चीजें एक्वायर करती है। और हमारे रिज्यूमे में ये 4 चांद लगा देंगे, ठीक है। सो टेल मी गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन? जस्ट एक्नॉलेज, जस्ट टाइप E if you are enjoying this session, just type E. Thank you Akhil, Shubham, Rahman, Alishu, thank you so much. This is to just check out कि आप मेरे साथ है या नहीं है। Thank you so much guys. Right. So exactly just understand this thing कि ये सर्किट्स का इंपॉर्टेंस कितना है। इवन PLC लेआउट, राइट, PLC लेआउट्स आर देयर, वो सिंगल क्लिक में आपके ब्रांड के अकॉर्डिंग, ABB, Allen Bradley, Telcanic, many things are there, सिंगल क्लिक में सभी चीजें आपके सामने अवेलेबल है यहाँ पे। देयर इज नो नीड कि आपको पूरा डिटेल, इवन कनेक्टर डायग्राम, पॉइंट टू पॉइंट डायग्राम, कॉम्प्लेक्स सर्किटरी, आई विल शो यू वन डायग्राम, कनेक्टर डायग्राम, राइट। See, these are the connectors utilized, right? Number of incoming and number of outgoing circuit are the very much same ही रहता है, अलग नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए कितना कॉम्प्लेक्स सर्किटरी, कहाँ का वायर कहाँ जाता है। तो here actually we are not designing lines, we are designing the wires. Just see, these are the wires, not lines, right? So can anyone tell me what is AWG? AWG. Can anyone guess? अच्छा चलो AWG का A निकाल देते हैं, WG बताइए एटलीस्ट। वायर का करंट कैरिंग कैपेसिटी किससे मेजर करते हैं हम लोग? कोई ऐसा टूल है? वायर गेज, एग्जैक्टली, ओके ग्रेट, वायर गेज, दिस इज द वायर गेज। और इंडिया में कौन सा वायर गेज यूज करते हैं हम लोग? SWG, we use standard wire gauge। प्लीज गूगल को तकलीफ मत दीजिए, अगर कोई गूगल कर रहा हो तो नहीं बता देता आपको। स्टैंडर्ड वायर गेज, राइट, वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड। और यहाँ पे जो AWG दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली अमेरिकन वायर गेज। स्टैंडर्ड्स का बदल जाते हैं सिटी कंट्रीज के हिसाब से, राइट। तो वी आर हियर सीइंग द अमेरिकन वायर गेज, ठीक है। तो अमेरिकन वायर गेज के हिसाब से पूरी करंट कैरिंग कैपेसिटी, एम्पेसिटी, फैक्टर, सभी चीजें एक्चुअली बदल जाती है। और हम लोग यहाँ पे एक्सेस देते हैं इसको कि वायर नंबरिंग भी अलाउ कर सकते, राइट। तो आपने शायद तो श्री कृष्ण के हाथ का चक्र देखा होगा, उनके हाथ में जैसे चक्र होता है, तो स्टैंडर्ड वायर गेज लगभग उसी टाइप का होता है, जहां से हम लोग करंट कैरिंग कैपेसिटी मेजर करते हैं इसके, राइट। तो यू कैन रिलेट दिस। तो यहाँ पे कैसा है कि इंजीनियरिंग इज वेरी मच इंटरेस्टिंग गाइस। अगर आप इसको रिलेट करते हुए पढ़ते हैं इंजीनियरिंग थॉट्स के अलावा, तो आप बहुत ज्यादा देर तक और लंबे समय तक इसको याद रखने के लिए कैपेबल हो पाते हैं, राइट। तो दीज आर द कैपेबिलिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल कि क्यों मैं चाहूँ कि मैं इसे पढ़ूं, राइट। इवन तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टीज भी देखें तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज तरीके से सब चीजें चलती है। क्योंकि अगर किसी 10th के बच्चे को या 12th के बच्चे को मैं ऑटोकैड पढ़ा दूं तो उसके लिए सर्किट एक सिंपल सा डायग्राम होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए एक नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड्स के थ्रू ही हम लोग डायग्राम्स बनाते हैं। ऐसा नहीं कि आपके मन में कुछ है तो आप कुछ भी बना दो, मेरे मन में कुछ है मैं भी कुछ बनाती हूँ डिजाइन, राइट। तो जस्ट मेक श्योर कि ये इंपॉर्टेंस क्या है। और यस,
conclusion of this all point is AutoCAD and AutoCAD Electrical, these are the not same software, these are the different softwares, right? So I would like to share some projects also with you, so that you will come to know कि exactly इसमें क्या क्या कैपेबिलिटी है. नहीं तो बहुत बार स्टूडेंट्स का कंसर्न वही था, सब पढ़ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, लेकिन सब जॉब ही नहीं मिला. क्यों नहीं मिला? कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना. तो जॉब्स नहीं मिला क्योंकि हम लोग एप्लीकेशंस को ही नहीं समझ पाए, क्योंकि हम लोग ऑटोकैड पढ़ के भी फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो असाइनमेंट्स थे हम लोग उसी को ही बना रहे, राइट? वो जो असाइनमेंट्स थे दिस इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल रिक्वायरमेंट, लेकिन इलेक्ट्रिकल की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से होगी. आई होप यू विल एबल टू सी माय स्क्रीन. सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 33 केवी सिस्टम, राइट? तो इसको डिजाइन करने के लिए जो भी चीजें लगती है वो ऑटोकैड के थ्रू अवेलेबल हो जाती है. आपके सिंबल्स एंड ऑल एवरीथिंग इज एक्चुअली अवेलेबल, राइट? सो यहाँ पे अगर आप सर्किट डिजाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बेसिक्स सिंबल्स की ही जरूरत है. और ये ऐसा नहीं है कि ऑटोकैड इंडस्ट्री में काम करना है तभी आपको इसकी जरूरत होती है. आपको सर्किट रीडिंग हर इंडस्ट्री का एसेंशियल पहलू है. किसी भी अगर आप मेंटेनेंस में भी देखें तो जब तक आप सर्किट को रीड नहीं समझ सकते तब तक आप मेंटेनेंस में भी वर्क नहीं कर सकते, राइट? तो दिस इज द प्राइम रिक्वायरमेंट, राइट? और दिस वाज द प्रोजेक्ट डन बाय मी. तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को हमने शेयर किया था ये प्रोजेक्ट. दिस वाज द नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट. मैं इसको जूम करके शो करता हूँ. दिस इज द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ मानकापुर सबस्टेशन जीएसएस 132 केवी. तो ये डायग्राम का प्रोजेक्ट हमें मिला था यहाँ पे. तो दिस इज द स्विचिंग सबस्टेशन, राइट? मानकापुर सबस्टेशन. तो यहाँ पे देखिए सर्किट को अंडरस्टैंडिंग देखिए, खापरी, न्यू एयरपोर्ट, ये हमारे एरियाज है, नेशनल स्क्वायर एंड ऑल. इसका सिंगल लाइन डायग्राम है, राइट? तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो पीडब्ल्यूडी से सैंक्शन होते हैं, राइट? पीडब्ल्यूडी के थ्रू सैंक्शन होते हैं. तो विदाउट सैंक्शनिंग कोई भी प्रोजेक्ट नहीं परफॉर्म कर सकता. सोलर इंडस्ट्री हो, सोलर पैनल हमें प्लेस करना हो, ट्रांसफार्मर का प्लेसमेंट हो, विदाउट अप्रूवल ऑफ ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल डायग्राम नो वन कैन एक्चुअली रिकॉग्नाइज ये प्रोजेक्ट पे सैंक्शन है या नहीं. अगर आप किसी बिल्डिंग को भी डिजाइन करते हैं, वहां पे इल्यूमिनेशन स्कीम रखते हैं, वहां पे भी आपको इसका यूटिलाइजेशन. तो विदाउट इसके काम ही नहीं चलता इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में. एंड वी आर अंडररेटिंग कि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को क्या काम, राइट? तो दिस इज कंप्लीटली मिथ कि हमें इसकी जरूरत नहीं है. सी कंट्रोल सर्किट्स, किसी भी इंडस्ट्री में आप जाओगे, वेरी फेमस क्वेश्चन, स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड स्टार्टिंग मेथड्स. इसको तो रट्टा करके जरूर चले जाइए क्योंकि ये वेरी फेमस क्वेश्चन है. ऐसे कोई इंडस्ट्री नहीं जहाँ पे आपको मशीनरीज ना दिखे, और ऐसा भी कुछ नहीं कि स्पीड कंट्रोल मेथड्स वहां पे यूटिलाइज ना हो. हर इंडस्ट्री का पार्ट है. इसलिए मेंटेनेंस की जॉब्स में जब भी आप जाते हैं तो इसको तो रट्टा मार के चले जाइए आप, राइट? कि किस तरह से स्पीड कंट्रोल मेथड यूज की जाती है एंड किस तरह से स्टार्टिंग मेथड्स यूज की जाती है, राइट? तो इसका भी डिजाइन इस तरह से होता है. यस, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, रेसिडेंशियल, तो इसका भी डिजाइन यहाँ पे किया जाता है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का यूज करके. एंड यस, वेरी मच इंटरेस्टिंग. और एक करियर आपको मैं बताना चाहूंगा, इंटीरियर डिजाइनर्स. इंटीरियर डिजाइनर्स को जरूरत होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की जो इल्यूमिनेशन स्कीम्स को डिजाइन कर पाए नए नए घरों में, राइट? सो यहाँ पे मुझे बताते हुए काफी बुरा लग रहा है, लेकिन दिस इज द फैक्ट कि जितना नॉलेज एक इंटीरियर डिजाइनर्स को होता है इल्यूमिनेशन स्कीम का, उतना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को नहीं होता. दिस इज एक्चुअल फैक्ट. अगर मैं जितने भी यहाँ पे 130 पीपल है, यहाँ से अगर मैं सभी को बोलूं कि आपके घर की वायरिंग डिजाइन खुद करके दिखिए, तो डेफिनेटली आप अकेले नहीं कर पाएंगे. आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी. आप डिजाइन नहीं कर सकते, राइट? सो आई एम नॉट चैलेंजिंग एवरीवन ओवर हियर, लेकिन दिस इज द फैक्ट कि मैक्सिमम लोग एक्चुअली नहीं कर पाते. यहाँ पे फैक्ट्स होता है, लेकिन दिस इज द एक्चुअल फैक्ट कि इंटीरियर डिजाइनर्स काफी इजीली उसको कर देते हैं. उनको पता है स्टैंडर्ड्स, जितने हमें भी नहीं पता होते कि कौन से स्विचेस लेना है, कौन से स्टैंडर्ड्स के स्विचेस मार्केट में अवेलेबल है. तो यहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि हम लोग एसोसिएट हो सकते हैं इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ इस प्रोजेक्ट में. तो ये जो डायग्राम है यहाँ पे, आई वुड लाइक टू शेयर वन स्टोरी विथ यू. एक दिन हमारे यहाँ पे एक सर आए थे, ही वाज 20 years एक्सपीरियंस विद दिस इंडस्ट्रीज. तो वो उनको मैंने जब ये डायग्राम बताया तो ये स्ट्रेट में रिजेक्टेड दिस डायग्राम. ही टोल्ड मी कि ये अनऑथेंटिकेट डायग्राम, दिस डायग्राम इज नॉट एट ऑल ऑथेंटिकेट, राइट? आई पोलाइटली आस्क्ड हिम, सर व्हाई ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? ये तो मेरा इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट था, मैं बता रहा हूँ आपको. दिस वाज द इंडस्ट्री प्रोजेक्ट एंड दिस वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट टू मी. मतलब काफी इंटरेस्टिंग मैंने किया और आप बोल रहे हो कि ये अनऑथेंटिकेट है. सो ही स्ट्रेट अवे टोल्ड मी, इस तरह के वायर मैंने आज तक इस इंडस्ट्री में देखे नहीं, राइट? व्हाट ही टोल्ड मी कि इस तरह के वायर्स मैंने आज तक देखे ही नहीं. मैंने बस वो स्ट्रेट टाइप के वायर देखे.
मतलब अगर किसी ने जापान नहीं देखा तो मतलब वो जापान है ही नहीं, राइट? सो दिस वाज द काइंड ऑफ सेम थिंग। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये जो है इसको आर्ट वायरिंग बोला जाता है, राइट? दिस इज द आर्ट वायरिंग। और सर जो बात कर रहे थे वो चैम्फर्ड वायरिंग, राइट? जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये अनऑथेंटिकेट नहीं है, दिस इज ऑथेंटिकेट, लेकिन दिस इज द ये टेक्निक है इंटीरियर डिजाइनर्स की शो करने का कि वायरिंग किस तरह से। दिस इज व्हाट कॉल्ड आर्ट वायरिंग। एंड जो रेगुलरली हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिवाइस देखते हैं दैट इज व्हाट कॉल्ड चैम्फर्ड वायरिंग। जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि अगर गलत है तो गलत ही है। When I showed him many projects, then he convinced कि नहीं ऐसा भी कुछ होता है, right? And yes, this is the answer to all the people जिन्होंने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग डिजाइन को बोला था कि ये हमारे काम का नहीं है। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, जब भी इलेक्ट्रिकल पैनल को डिजाइन किया जाता है वी एक्चुअली यूटिलाइज दिस कॉन्सेप्ट ओवर हियर, राइट? फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप डायमेंशन के साथ सभी चीजें दी गई है। सी वहां पे स्पेसिफिकेशन एंड ऑल दिए जाते हैं यहाँ पे सभी चीजों का, राइट? और इस तरह से हम लोग एक्चुअली यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी स्किल्स को। दीज आर द टेक्निक्स थ्रू विच हम लोग इंजीनियरिंग डिजाइन के, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के जो कंसेप्ट है वो यूटिलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल। सो आई होप काफी हद तक ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के कंसेप्ट्स में आपके क्लियर करने में पॉसिबल हो चुका हो। एंड आई आल्सो शोड यू कि एग्जैक्टली कितनी चीजें हैं जहां पे हम लोग स्कोप देख सकते हैं, राइट? क्योंकि अगर ये चीज समझी तो सामने की चीजें काफी आसान है अंडरस्टैंड करने की, राइट? एंड दीज आर द कंपनीज। सर आपने बता दिया सॉफ्टवेयर कैसा है, क्या है, बहुत अच्छा है, टूल्स भी है, लेकिन सर जॉब नहीं मिल पाते ना। मैंने तो ऑटोकैड किया था लेकिन अब तक जॉब नहीं मिल पाया। किस तरीके से किया? देयर आर मेनी थिंग्स। अगर आप ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल करते हैं तो वेरी फेमस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइस, यहाँ पे रिपोर्ट्स दिखता है, राइट? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस जो है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का वो ये है, रिपोर्ट्स, राइट? अगर आप इस रिपोर्ट्स को क्लिक करें तो यू विल सी 16 टाइप ऑफ रिपोर्ट हम लोग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अगर आप जब भी आपका ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल कंप्लीट करते हैं और आपके रिज्यूम में अगर आपने सिर्फ इतना मेंशन किया ना कि आई नो द बिल ऑफ मटेरियल, आई नो हाउ टू जनरेट बिल ऑफ मटेरियल, जिसको कॉमनली बॉम कहा जाता है, BOM, यूजिंग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, तो भी आप काफी हद तक आपके इंटरव्यूअर को इंप्रेस करने के लिए सक्सेसफुल, राइट? क्योंकि बहुत लोगों को इसका नॉलेज ही नहीं है। अगर आज भी अगर हम लोग बिल ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो लोगों को पैसे वाला बिल दिखता है। बिल ऑफ मटेरियल इज एक्चुअली नॉट पैसा मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल में कंपोनेंट्स के नाम होते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन, उसका असाइनमेंट नंबर, उसका असेंबली कोड, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ वोल्टेज, करंट, एवरीथिंग इज देयर। उसको बिल ऑफ मटेरियल एक्चुअली कहा जाता है, राइट? सो बिल ऑफ मटेरियल हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो अगर ये आपको जनरेट करना आता है, पैनल डिजाइनिंग आती है, देन यू कैन प्राउडली से यस आई नो इलेक्ट्रिकल। क्योंकि ये जो लाइब्रेरी है ये अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टैंडर्ड बदलेगी। हर बार आपको नई नई लाइब्रेरी दिखेगी, राइट? तो ऐसा नहीं होगा कि आप इस बार यूज करते हैं तो हर बार वही करेंगे, राइट? तो इवन तो अगर यहाँ पे अगर आप मोटर को भी प्लेस करते हैं, will take more time to load, right? Right. So here you will see automatically, ठीक है, यहाँ पे ये प्लेस हो चुका है, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लेस हुई। लेकिन ये प्लेस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कनेक्शंस थे उस सिंबल्स को। ऐसा ही कहीं पे क्लिक नहीं हो जाएगा या फिर कनेक्ट नहीं हो जाएगा, वो जहाँ पे कनेक्शन है वहीं पे होता है। सो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स ही ये सॉफ्टवेयर यूज करता है, इसलिए कोई भी अदर पर्सन इसको यूज ना करते हुए एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही इससे यूज कर सकता है। आई होप यू आर प्रीटी मच क्लियर विद दिस थिंग्स, राइट? जस्ट एक्नॉलेज यस। Thank you. So I hope you are enjoying this session. If you'd like to me to continue this session, just type go on. Just type go on. If you'd like me to continue this session, just type go on. Thank you. Thank you so much. Bye. I hope you all are use Instagram account. So we have made this page named as Livewire LiveTech Skills, ठीक है? तो इस Livewire LiveTech Skills का जो पर्पस है, इस पेज को बनाने का पर्पस यही है टू शेयर द अवेयरनेस अमंग द इंडस्ट्रीज, राइट? जैसे AI है, लाइक दिस सेशन, राइट? स्किल्स जो है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एंड ऑल।
So we are actually utilizing this case. What are the real applications of machine learning? Because as a engineers, you need to understand all these technologies. So we are creating some awareness regarding all the branches available, right? So अगर यहाँ पे I would like to share one diagram with you. Please let us say, guys. Please have patience. Still not able to find out that. Fine. Here you will see. See. Yes, this one. Right. तो here you will see the understanding the electrical system design exactly क्योंकि हम लोग कैसे कि ग्राफिकली हम लोग समझाए तो ज्यादा बेहतर हम लोग समझ पाते हैं इस चीज को राइट सो जस्ट अंडरस्टैंड हाउ यू कैन बी मास्टर इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिजाइन तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्राइम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियरिंग में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट्स का नॉलेज बहुत ज्यादा चाहिए ये सब्जेक्ट्स ही है जो आपको इससे सबसे ज्यादा वैल्यूज देंगे सबसे पहले और जैसे हमने अभी तक बहुत ज्यादा डिस्कस किए हैं यहाँ पे ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग स्कीमेटिक डिजाइन पैनल डिजाइन एंड बिल ऑफ मटेरियल डिजाइन जो है इसके बारे में देखा लेकिन अब यहाँ पे जो भी मैंने सर्किट डिजाइन किया ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में जो भी मैंने सर्किट डिजाइन किया उसका ऑथेंटिकेशन कहाँ से आएगा उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे आप राइट उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो किस तरह से डिजाइन करना फॉर एग्जाम्पल किसी सबस्टेशन को मुझे डिजाइन करना है और इस सबस्टेशन को डिजाइन करने के लिए मुझे एनालाइज तो करने की जरूरत होगी ना सर्किट ब्रेकर का साइज कहाँ से डिफाइन होगा ट्रांसफार्मर का साइज कहाँ से डिफाइन होगा सो देयर इज समथिंग लाइक एनालिसिस पर कोई भी इंडस्ट्री चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो मैकेनिकल हो सिविल हो विदाउट एनालिसिस कोई भी इंडस्ट्री वर्क नहीं कर सकती एंड हियर फॉर दैट सेक we need to learn electrical transient analyzer program that is what called ETAP software तो ये डायनामिक है ट्रांसिएंट प्रोटेक्शंस के रिलेटेड जितने भी क्यूरीज है इसको सॉल्व कर देता है दिस इज हाउ कैपेबल ऑफ दिस कैपेबल है ये सॉफ्टवेयर राइट सो एक्चुअली टेक्निकल इशू की वजह से आई कैन शेयर द ETAP सॉफ्टवेयर बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज सॉफ्टवेयर और अगर मैं अभी स्टार्ट कर दूंगा तो हैंग हो जाएगा पीसी राइट सो इट्स अ वेरी हेवी सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे मैं आपको पीपीटी के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि ETAP एग्जैक्ट किस तरह से वर्क करता है Are you guys with me? Say yes if you are with me. Yeah, thank you, Raymond. Right. So this is the ETAP. So ETAP is a very powerful software in the area of power system. Analyzing कुछ सर्किट को जिस तरह से किया जाता है तो इसके लिए कुछ मॉडल्स की जरूरत होती है आप सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल्स के थ्रू पढ़ते हो अंडरस्टैंड करते हो चीजों को लेकिन यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स होते हैं राइट जिसके बिना ये काम नहीं कर सकते तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ETAP क्यों हमें पढ़ना है बिकॉज पावरिंग रिसोर्स में काफी चीजें रहती है जिसको मॉनिटर करना होता है और जिसमें प्रेडिक्ट करना होता है राइट कि ये मॉडल किस तरह से काम करेगा ठीक है कैन एनीवन टेल मी टॉलरेंस कितना होता है वोल्टेज में कितना परसेंटेज का टॉलरेंस होता है फॉर एग्जांपल अगर मेरे घर का मैं कुछ चीजें डिजाइन कर रहा हूँ तो वो क्या परफेक्टली 230 वोल्ट के लिए ही होती है अगर समझ लीजिए 231 वोल्टेज हो गया तो बंद हो जाएगा सर नहीं हो जाएगा राइट सो कैन एनीवन टेल मी कितना परसेंटेज का टॉलरेंस होता है टॉलरेंस मतलब रेंज पर प्लस माइनस 5 वोल्ट नहीं यस एग्जैक्टली अभिषेक ग्रेट थैंक यू सो मच तो 10% होता है लेकिन प्लस माइनस 10% अगर 10% ज्यादा वोल्टेज आए तो भी ठीक है 10% कम हो जाए तो भी ठीक है राइट क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कभी कभी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ही वो फॉल्ट आ जाता है तो इसके लिए हम पूरा का पूरा सिस्टम तो बंद नहीं कर सकते ना इसलिए टॉलरेंसेस होते हैं तो ये सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम लोग स्विचगेयर एंड प्रोटेक्शन की बात करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है वो इसी के ऊपर होता है जब भी कोई सबस्टेशन डिजाइन किया जाता है कि जितने हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सा है किसी भी सबस्टेशन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है या फिर इक्विपमेंट सबस्टेशन जिसके लिए ही पूरा खर्चा होता है ट्रांसफॉर्मर एग्जैक्टली सबसे कॉस्टली चीज वही है हमारी ट्रांसफॉर्मर और इसी के प्रोटेक्शन के लिए पूरी चीजें तैयार की जाती है प्रोटेक्शन राइट
सर्किट ब्रेकर्स, आइसोलेटर्स, अर्थिंग स्विच, इसका ऑपरेशन भी शायद आपने देखा होगा साइमल्टेनियसली वो कैसे वर्क करते हैं। तो इंटेल सॉफ्टवेयर उसमें आपको मदद करता है कि आप किस तरह से इसको डिजाइन कर पाए, राइट। सो ये सभी सेक्टर्स हैं जहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन आप देख पाएंगे। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन, लो वोल्टेज एप्लीकेशन, ये सभी एप्लीकेशन में आप इसको देखेंगे। लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो है वो यहाँ पे है। आपने इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन पढ़ा होगा शायद, राइट। तो इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में इसका बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन। तो वहां पे जो बूस्टर ट्रांसफॉर्मर्स डिजाइन किए जाते हैं, क्योंकि वहां के ट्रांसफॉर्मर थोड़े अलग होते हैं, 25 केवी के सप्लाई के लिए स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं, राइट। आई होप यू हैव लर्न दिस सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, तो वहां पे शायद आपने इस चीज पढ़ी होगी, राइट। राइट। सो ये एप्लीकेशन एरियाज है जहां पे यूज किए जाते हैं। तो एग्जैक्टली इसमें कितने मॉड्यूल्स, तो वी आर यूटिलाइजिंग 4 मॉड्यूल्स, राइट। So there are load flow analysis, short circuit analysis, motor acceleration and transformer side. तो ये जो एनालिसिस है ये शायद आपने न्यूमेरिकल के थ्रू दिया होगा, पढ़ा होगा, लेकिन न्यूमेरिकल में एक्चुअली डिफिकल्टी ये है, बहुत सारी चीजों की जो वैल्यू है वो गिवन रहे, राइट। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल्स जब हम लोग ट्रांसफॉर्मर के सॉल्व करते हैं तो वहां पे ट्रांसफॉर्मर रेशियो के उसका वैल्यू जो है वो ऑलरेडी गिवन होता है। और हमारा टेंडेंसी ऐसा है कि अगर कोई वैल्यू गिवन है तो उस पर दिमाग ही नहीं लगाया जाए, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, एक्चुअली ये दिख तो रहा है लेकिन ये निकलता कैसे है, ये वैल्यू गिवन है तो लेकिन आता कैसे, हम लोग इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है। तो पावर सेक्टर में जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना तो ये डिफिकल्टीज रहती है। लेकिन जब आप सिस्टम को डिजाइन करते हो बाय द यूज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर ना, तब इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि आप समझे, इस अंडरस्टैंड करें इस चीज को, राइट। तो ये मॉड्यूल्स बहुत हाईएस्ट रेट पे यूज किए जाते हैं। तो टॉप 10 इलेक्ट्रिकल डिजाइन फर्म्स जो है वो एक्चुअली ई टैप में वर्क करते हैं। इसमें मैक्सिमम जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो यूज करती है इसको, यूएसए बेस्ड, एज दिस सॉफ्टवेयर बिलोंग्स टू दैट ओनली। तो वहां पे ज्यादा यूज किया जाता है इस सॉफ्टवेयर को। एंड सुन के या अंडरस्टैंड करके काफी बुरा लगता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ऑलमोस्ट 60% इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने अपनी जिंदगी में कभी ई टैप सॉफ्टवेयर के बारे में सुना ही नहीं। इसमें वो लोग भी हैं जो 15 साल 20 साल से एक्चुअली काम कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने अगर सुना भी होगा तो उनको सिर्फ नाम पता है ई टैप, व्हाट इट डज, हाउ इट एक्चुअली ऑपरेट्स, क्यों एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैंडेटरी है मेरे लिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना, नो वन एक्चुअली नोस, राइट। तो यहीं से अवेयरनेस का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो यू पीपल जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ई टैप के लिए बहुत ज्यादा डिमांड है इंडस्ट्रीज में, एंड दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट स्किल दैट इंडस्ट्री इज एक्चुअली लुकिंग फॉर। अगर आप इसको समझना, अंडरस्टैंड करेंगे तो यहाँ पे जो आपका प्रॉब्लम था ये, इसको काफी हद तक आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। जब तक हम लोग ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे दिस आर द मैंडेटरी स्किल्स, दिस आर नॉट ऑप्शनल स्किल्स, तो तब तक हम लोग वो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। जहां हम लोग चलते हैं वापस इस डायग्राम की ओर, राइट। सो हियर यू विल अंडरस्टैंड अगेन कि यहाँ पे ई टैप है, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल है। अभी आते हैं सिमुलेशन के बारे में, राइट। सो सिमुलेशन के लिए सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो एक ही है, दैट इज व्हाट कॉल्ड मैटलैब। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ मैटलैब? जस्ट हैव अ क्विक रिस्पांस। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ मैटलैब? चैतन्य काफी हद तक आप करेक्ट थे, आधा करेक्ट था आधा रॉन्ग। अब गूगल किए बिना अगर आंसर दोगे तो काफी अच्छा लगेगा मुझे। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ मैटलैब? यस, मैट्रिक्स लेबोरेटरी। ग्रेट अनिकेत, थैंक यू। सो इट इज व्हाट कॉल्ड मैट्रिक्स लेबोरेटरी, राइट। सो मैट्रिक्स लेबोरेटरी बोल रहे हैं, मैटलैब का नाम है, इसका मतलब कुछ तो रिलेशन होगा इसका M3 के मैटलैब मैट्रिक्स टॉपिक के साथ, राइट। सो हियर इज द रीजन कि जो भी चीज आप मैटलैब सॉफ्टवेयर में एज ए इनपुट देते हो उससे कोई आपकी लैंग्वेज नहीं समझती, वो उसको कन्वर्ट करता है मैट्रिक्स की लैंग्वेज में। इवन दो अब अगर आप उसे इमेज भी दोगे तो भी वो मैट्रिक्स के हिसाब से ही उसके साथ वो ऑपरेट करेगा, उसको नहीं समझता है कि वो एक्चुअली इमेज है या क्या प्रोस्पेक्ट, राइट। तो जस्ट मेक श्योर मैटलैब आप जैसा देखते हो वैसा सोचते हो वैसा नहीं है। वी आर हैविंग अ 6 months ऑफ सिलेबस ऑफ मैटलैब इन आवर इंस्टीट्यूट। 6 महीने भी आप मैटलैब पढ़ोगे तो भी एंड नहीं होगा, इतना ह्यूज है। जस्ट अंडरस्टैंड, एक सेमेस्टर तक भी मैटलैब पढ़ सकते हैं, इतना ह्यूज है, राइट।
So I would like to share again a quick story with you, MATLAB से related. शायद 3 साल पहले हमारे यहाँ पे एक सर आए थे, तो he was 17 years experienced with the MATLAB. मतलब 17 साल से वो MATLAB के ऊपर प्रोजेक्ट्स कर रहे थे डिजाइन सेक्टर्स में, या फिर कॉलेज के जो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स थे स्टूडेंट्स के, उसको वर्क कर रहे थे वो लोग, या फिर फ्रीलांसिंग कंपनीज के काम कर रहे थे फ्रीलांसर करके. लेकिन he came to inquire about MATLAB software. So it was very obvious question from my side कि सर आपका एक्सपीरियंस इतना ह्यूज है, 17 ईयर्स से आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस उस समय सिर्फ 3 साल का था. तो इट वॉज अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड कि सर मैं आपको क्या पढ़ाऊं, राइट. इज वॉट वेरी जेन्युइन क्वेश्चन ना, कि सर आप इतने एक्सपीरियंस्ड है, इतना मतलब 17 साल से आप पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो मैं आपको क्या पढ़ा सकता हूँ. So later on, I shared my syllabus with him, and he already knew my syllabus. तो उन्होंने सिलेबस में 18 चैप्टर्स एनकाउंटर किए. तो उनका कहना यह था कि 18 चैप्टर में से 15 चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाता हूँ. ठीक है, कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप. 18 चैप्टर्स में से 15 चैप्टर्स मैं आपको पढ़ा देता हूँ विदाउट बुक. वो जो बचे हुए 3 चैप्टर है ना, राइट, वो जो बचे हुए 3 चैप्टर है ना, वो आपको मुझे पढ़ा है, राइट. Just understand, guys, a guy who is having experience of 17 years using MATLAB software, having many industrial projects in his pockets, he still wanted to learn MATLAB just for the sake of that 3 subjects. फिर हम कहाँ पे exist कर रहे हैं? We are just knowing the name of MATLAB. 130 plus strength is there in this session. लेकिन सिर्फ 2 या 3 लोगों के ही रिप्लाई आए. यही से आप समझ सकते है कि इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो इतना इंपॉर्टेंट है मैटलैब, और हमें उसके लॉन्ग फॉर्म के बारे में तक नहीं पता. दिस इज द प्रॉब्लम विद अस गाइस. ठीक है, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू कि आपको पता नहीं है ऑल, बट एटलीस्ट हैव दैट क्यूरियोसिटी कि क्या होगा, इसमें क्या है. अगर मैटलैब नहीं होता तो शायद ना कोई एरोप्लेन उड़ पाता, ना शायद कोई फाइटर जेट उड़ पाएगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ लैक ऑफ सिमुलेशन करने पड़ते हैं, पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ती है, और दिस इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल. 1 लाख अगर आप ह्यूमनली करते बैठे तो इट विल टेक मोर एंड मोर टाइम. तो विद द यूज ऑफ मैटलैब ये 1 लाख जो सिमुलेशन है सिर्फ 1 वीक के अंदर आराम से हो जाते हैं. आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर आप केस स्टडीज देखें मैटलैब से रिलेटेड, यू विल कम टू नो कि मैटलैब हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं, राइट. सो देयर आर सिमुलेशन वर्क, देयर आर सम रिजल्ट एनालिसिस विद दिस. सो एक कॉमन एग्जांपल्स में आपके साथ शेयर करता हूं, यू विल कम टू नो अबाउट दिस थिंग. क्या सभी ने चॉकलेट वेंडिंग मशीन देखी है सभी ने, जहां पे आप लोग 10 रुपीज डालते हैं, चॉकलेट या फिर चिप्स निकलता है, राइट. देखिए अगेन, इसके अलावा सभी ने कैश डिपॉजिट किया है बैंक्स में, कैश डिपॉजिट मशीन इज देयर. कैसे पता चलता है उसे कि 500 का नोट है, 2000 का नोट है, उसको कोई बताता नहीं है वहां पे मैन्युअली, राइट. या फिर ड्राइवरलेस कार टेक्नोलॉजी कैसे डिटेक्ट करेगी, कैसे अंडरस्टैंड करेगी कि आगे कोई पर्सन है. ड्राइवरलेस कार टेक्नोलॉजी किस तरह से यूटिलाइज की जाती है, राइट. दिस ऑल थिंग्स एक्चुअली हैविंग द एप्लीकेशन ऑफ मैटलैब. तो मैटलैब में शो यू द पीपीटी अगेन. मैटलैब में नंबर ऑफ टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग इसको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट. तो ये हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है टेक्निकल कंप्यूटेशन के लिए, और वर्ल्ड की शायद ही कोई ब्रांच हो जो मैटलैब को यूज ना करती हो. जहां पे मैथमेटिक्स है वहां हर जगह मैटलैब होगा ही होगा. ठीक है, की फीचर्स बिल्ट इन ग्राफिक्स होते हैं इसमें बहुत. आई एम नॉट श्योर कि आपको, मतलब आई होप कि आपको सभी को पता है मैटलैब क्या होता है, लेकिन मैं बस आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदलना चाहता हूँ कि मैटलैब आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं, इट्स ह्यूज. आप पूरी जिंदगी भी दे दो भी खत्म नहीं होगा. लेकिन अगर पूरी जिंदगी देना ही है तो एक सॉफ्टवेयर के पीछे क्यों दी जाए, जितना हमारे काम का उतना ही पढ़ना पड़ेगा ना. That is why you need to learn and understand the MATLAB for electricals, right? आपने शायद एक सब्जेक्ट में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन में, ट्रांसलेशनल सिस्टम एंड रोटेशनल सिस्टम. और 2 years बैक मेरा एक सेमिनार हुआ था वहां पे, जब ये कोविड-19 का प्रॉब्लम नहीं था. उस समय आभा गायकवाड़ पाटिल में मैंने एक सेमिनार दिया था. उस समय मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि एक इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन के सब्जेक्ट्स में आप जो डेरिवेशनल इक्वेशंस देखते हैं उसका यूज करके हम लोग मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं हमारे मैटलैब में. तो वहां पे ट्रांसलेशनल सिस्टम थी, रोटेशनल सिस्टम थी, डैम्पर्स थे,
राइट। ऐसी जो चीज होती है स्प्रिंग डैम्पर्स, उसका यूटिलाइजेशन करके इक्वेशंस बनाने थे और उसका यूज करके हमें सर्किट्स डिजाइन करने थे, राइट। सो दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू पीपल। अगर आप क्योंकि मैं ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ, बहुत बार रिज्यूमे में बच्चे मेंशन करते हैं आई नो मैटलैब, क्यों? क्योंकि हमारे कॉलेज में था, राइट। जस्ट अंडरस्टैंड मैटलैब इज वेरी ह्यूज, आपको बहुत डेडिकेटेड समय देना होता है। हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि सिर्फ कोड टाइप कर लिया और वेवफॉर्म दिख गया आउटपुट में, मतलब हो गया मैटलैब। मैटलैब इज नॉट ऑल अबाउट दैट। उस कोड का इंटरप्रिटेशन समझना बहुत जरूरी है, इसका एग्जीक्यूशन, इसका फ्लो चार्ट, ये वैल्यू हमने क्यों दिया, ट्रांसफर फंक्शन किस तरह से सॉल्व होगा। जिस स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को आप सॉल्व करते हैं, जिस स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को आप अंडरस्टैंड करने के लिए 5-5 6-6 पेजेस के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, वो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपके मैटलैब सॉफ्टवेयर में सॉल्व हो सकता है। इतना फास्ट कैपेबिलिटी है सॉफ्टवेयर, राइट। इसके अलावा भी देयर आर 79 डिफरेंट टूल्स व्हिच इज यूज्ड बाय द मैटलैब। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो सर जो मेरे पास आए थे वो 3 चैप्टर्स पढ़ने के लिए, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और हाईएस्ट प्रायोरिटी चीज थी चार्ट लेबल फंक्शंस। शायद जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आगे जाना चाहेंगे या फिर फॉरेन में जिसको जाना है, उसको मैटलैब मैंडेटरी होता है पढ़ना, राइट। तो वहां पे चार्ट लेवल फंक्शन जो है वो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी के साथ बनाया जाता है या फिर यूज करते हैं। या फिर कोई पीएचडी के लिए वर्क करता है, उनको बहुत ज्यादा जरूरी है चार्ट लेवल फंक्शंस का यूटिलाइजेशन, राइट। तो उसमें जो है वो लॉजिक्स बिल्ड हम लोग एक्चुअली करते हैं, राइट। तो स्पेशलाइज एग्जैक्टली क्या है, तो मैटलैब के दीज आर द कॉमन एप्लीकेशंस। मैटलैब विद द रोबोटिक्स, आईओटी के साथ ये अभी मर्ज किया है। आई होप यू नो द आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दे कैन इमेज प्रोसेसिंग इज देयर, कंट्रोल पैनल इज देयर, राइट। सो इमेज प्रोसेसिंग कुछ इस तरह से होती है मैटलैब के थ्रू, ठीक। तो हम लोग मैटलैब को जब ऐसे इनपुट ये सब चीजें देते हैं, तो हम लोग फीचर एनहांसमेंट करके इस तरह की चीजें वहां पे जनरेट कर सकते हैं, राइट। ब्लैक एंड व्हाइट इमेज यूज कर सकते हैं। तो आप जो यूज करते हैं चीजें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से इमेज कॉम्प्रेशन किया गया है, ये जो इमेज एनहांसमेंट की गई है। इवन न्यूरल नेटवर्क को, अगर आप न्यूरल नेटवर्क को भी देखें, तो वहां पे आप देखोगे, वहां पे भी आप देखोगे कि मेडिकल सेक्टर्स में इन सभी टेक्नोलॉजीज का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन जो है वो मेडिकल सेक्टर्स में आप देखेंगे, न्यूरल नेटवर्क्स में। यहाँ पे मैटलैब बहुत हेवी तरीके से यूज किया जाता है, अग्रेसिवली, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें मैटलैब अगर हम लोग पढ़ते हैं तो स्कोप देखना बहुत जरूरी है, राइट। तो हम लोग जो करते हैं वो सिमिलिंक का यूज करके मैटलैब, फॉर एग्जांपल दिस सर्किट, जस्ट अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम लोग सर्किट को डिजाइन करते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी रेडी रहता है, हम बस एलिमेंट्स को ढूंढते हैं, उसको रखते हैं, सिमुलेशन करके यहाँ पे सॉल्वर का कॉन्फ़िगरेशन में रिजल्ट देख लेते हैं, हो गया हमारा प्रैक्टिकल, राइट। अगर आप ये कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वो नहीं समझ पाएगा जो एक्चुअली समझना है। यहाँ पे आपको सवाल आने चाहिए, क्वेश्चंस आने चाहिए कि ये क्या है। स्कोप्स में आप जब वेवफॉर्म्स देखते हैं तो एग्जैक्टली क्या है, ये सिमुलिंक कन्वर्टर यही क्यों लिया हमने, दूसरा क्यों नहीं लिया, इसकी वैल्यू, जैसे हम लोग रजिस्टर की वैल्यू डालते हैं, तो यही वैल्यू क्यों डाली जाए, दूसरी क्यों नहीं डाल सकते हम लोग, राइट। ये क्वेश्चंस जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग क्यूरियोसिटी जनरेट नहीं कर सकते, राइट। एज आई ऑलरेडी शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू गाइस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फॉर दैट पीपल ओनली जो पैशनेट है अपनी ब्रांच के लिए। अगर आप पैशनेट नहीं है, अगर आप सवाल नहीं कर सकते, तो आप जवाब भी कभी ढूंढना नहीं चाहिए, राइट। So these are the industries actually, and yes, industrial automation using PLC SCADA, right? So here is my will. यहाँ पे मेरा एक सिंपल सा आपको सजेशन रहेगा, जब भी आप ऑटोमेशन के लिए देखिए PLC SCADA में, तो तब आप कंटेंट पे जरूर फोकस कीजिए, राइट। जस्ट फोकस ऑन द कंटेंट, क्योंकि ये जो एप्लीकेशंस है ये डेफिनेटली डे बाय डे, हाँ कोरोना की वजह से थोड़ा स्लो डाउन हो गया है इंडस्ट्रीज, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे देयर विल बी अ ह्यूज एडवांसमेंट विद द इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, राइट। क्योंकि प्रोसेस जो हो रही है अभी, ऑटोमेशन का जो इंट्रोडक्शन हो रहा है इंडस्ट्री में, तो मैनुअल प्रोसेसेस काफी हद तक कम हो चुकी है, एंड रिजल्टिंग ऐसा हो रहा है कि लोग अपने जॉब लूज कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आपको अपडेटेड रहने की जरूरत है नए टेक्नोलॉजीज के साथ। सीमेंस पीएलसी दिया, तो आप कौन से पीएलसी को चूज करते हैं ये भी बहुत जरूरी है। क्या वो इंडस्ट्री में विथस्टैंड करेगा? नहीं तो हम लोग कहते हैं कि सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेट हम लोग पीएलसी कर देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि एग्जैक्टली कंटेंट क्या रहेगा उसमें, सिलेबस क्या रहेगा, ये हमें किस तरह से काम आएगा, ये ब्रांड का यूज होता भी है, हनीवेल यूज होता है, सीमेंस होता है, या कौन सा होता है, राइट। जस्ट हैव दिस क्यूरीज इन योर माइंड। ये सवाल जब तक नहीं आएंगे तो आप कभी जवाब नहीं ढूंढेंगे, राइट।
अगेन दीज आर द इंडस्ट्रीज, आप फूड इंडस्ट्रीज देखेंगे, मार्केट इंडस्ट्रीज देखेंगे, तो विदाउट पीएलसी काम कुछ इस तरह से होते थे। देखिए अब हर जगह मैनुअल ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन आफ्टर यूटिलाइजिंग पीएलसी आप बस एक सिंपल से डेस्कटॉप के आगे बैठ जाते हैं और वहीं से सभी चीजें कंट्रोल हो जाती है, राइट। तो दिस आर द कैपेबिलिटी। ये चारों सॉफ्टवेयर है इलेक्ट्रिकल में इतने बड़े एंड ह्यूज पायनियर्स है कि इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज को कंप्लीटली चेंज कर दिया, उसका फेस ही बदल दिया। और इसकी कैपेबिलिटी इतनी बड़ी है कि आप रिमोटली बैठ के भी सभी इक्विपमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, सभी प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज द ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑल सॉफ्टवेयर ऑन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, राइट। नाउ यू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि इन चारों में से, इन चारों सब्जेक्ट्स में से कौन सी चीज मुझे है जो बेस्ट तरीके से आता है? क्या मैं इसमें एक्सेल हूँ? इसमें से चलो चारों का छोड़ दीजिए, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में भी क्या मैं एक्सेल हूँ इसके, राइट। यही से प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज हम फेस करना स्टार्ट कर, राइट। तो यहाँ पे जो सुपरवाइजरी इक्विपमेंट है ये किस तरह से काम करते हैं, ये स्क्रीन को क्या बोला जाता है, इसमें ऑपरेशंस किस तरह से, इवन आपने शायद विजिट किया होगा क्या, अच्छा अंबाझरी में एक ऑफिस है, लोड डिस्पैच सेंटर, राइट। आई होप आपने सुना होगा उसके बारे में, एलडीसी, लोड डिस्पैच सेंटर। वहां पे किस तरह के ऑपरेशंस किए जाते हैं, क्या फंक्शनिंग होता है लोड डिस्पैच सेंटर का। हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट में सिर्फ एक नाम आ जाता है तो हम लोग अवॉइड कर देते हैं उसको, राइट। तो ऐसा नहीं करना है, हमें ऑपरेशंस देखने हैं, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाके लोग आपको सवाल पूछेंगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम, आपका सोल्यूशन यही रहेगा कि जितने भी सवाल आज के सेशन में आपको आए हैं उन सभी का आप जवाब ढूंढिए। एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी आपको चैट बॉक्स में जो मैंने शेयर की थी आपको लिंक, उसको जरूर देखें। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको शेयर करूंगा एक बार, लेकिन जरूर इसको देखने की कोशिश कीजिए, राइट। So these are the operations: automated water treatment plant, PLC SCADAs में इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, सबस्टेशन का सिमुलेशंस एंड ऑल, ठीक है। तो ये सभी तरह के जो ऑपरेशंस है these are the controlled by this industries, ठीक है। एप्लीकेशंस, पावर प्लांट्स, पैकेजिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग। आई होप किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को सबसे पहले अगर मैं कुछ पूछूं कि हमारे इंडस्ट्रीज में कौन सा सबसे ज्यादा फेमस सॉफ्टवेयर है, तो आई होप सभी लोग यही आंसर देंगे, पीएलसी SCADA। तो हमें एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पीएलसी SCADA के अलावा कुछ एक्स्ट्रा और पता ही नहीं है, राइट। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे तो मैं लिस्ट करने जाऊँ तो बहुत थक जाऊंगा, क्योंकि बहुत इंडस्ट्री है जो पीएलसी SCADA एक्चुअली यूटिलाइज करती है, राइट। So I hope you are pretty much clear with all the content what I shared today with you technically. So how was that? It was amazing. Just like amazing. If you feel it was an amazing session, amazing topics, amazing knowledge. Just type amazing. Right. Thank you, Akhil, Rahman, Nikhil, Sanjay, Priya, Devanand, Raju, Tushar, Manish. Thank you so much, guys. I really appreciate your efforts. मतलब I completely understand. आप लगातार लेक्चर्स आपके चलते रहते हैं डेली बेसिस, 5 घंटे का कॉलेज का सेशंस होता है, लगातार सब्जेक्ट्स है, अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है, स्क्रीन की तरफ देखने की आदत नहीं है, न्यू नॉर्मल्स है, बहुत सारी चीजें, मेनी थिंग्स आर एक्चुअली देयर। लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसमें उस टाइम शेड्यूल में से 2 आवर्स मुझे दिए, आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, एंड वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू पीपल। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द अथॉरिटी ऑफ कॉलेज, सर शाह सर एंड अदर अथॉरिटी जिन्होंने ये मैनेज किया, इतना अच्छा सेशन अरेंज किया, HOD sir, principal sir, and all the dignitaries present in this session. I would like to thank from bottom of my heart. You have invited me for this amazing opportunity, and I would like to show my great gratitude towards all of you. Thank you so much. So with that note, I would like to share one last thing with of you guys. Just brighten up your career with the employable programs, right? Just learn, just understand how this industry is actually working. ठीक है, क्या क्या टूल सेट है, क्या क्या स्किल सेट्स है जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इस इंडस्ट्रीज को समझने के लिए एक ही जरूरत है, इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट थिंग इलेक्ट्रिकल, फॉर एवरी ब्रांच पीपल ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप समझे कि एम्प्लॉयबल होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। और प्लीज ओ माय गॉड मूवी का वो डायलॉग मत भूलिएगा कि हम बस एक पॉइंट को ही देखते हैं, कॉइन की एक साइड को ही देखते हैं,
दूसरे साइड को हम नहीं देखना चाहते, राइट? सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जस्ट प्लीज फॉलो दिस सेशन। और जैसे हमने लाइब्रेरी का अभी जो पेज दिया है, यहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे नॉलेजेबल स्टफ्स आपके साथ शेयर करते हैं, फैक्ट्स शेयर करते हैं, ताकि आप अपनी नॉलेज को अंडरस्टैंड कर पाए, राइट? देयर इज वेबसाइट livedeskills.com, there you can see many blogs related to electrical engineering, MATLAB, जहाँ से आप आपको अपस्किल्स कर सकते हैं और अगली स्किल्स पे, राइट? So with that note, I would like to thank everyone present over here. आपका रिस्पॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग था, and must say this is the best ever crowd I have ever encountered within the span of this 5 years. I have attended many seminars, many workshops, लेकिन this was the bestest ever in terms of strength also, in terms of response also. You guys was very interactive and very active with all the sessions. So thank you so much and very much congratulations to all of you guys कि आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया कि अगर आप शायद रिस्पांस नहीं देते तो शायद इतना अच्छा सेशन आपके कर पाता, राइट? ये कंडक्ट नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। सो एनी वन ऑफ यू अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है या मुझसे बात करना चाहता है, जस्ट हैव दिस कांटेक्ट विथ यू। Thank you. This is the mobile number. Thank you so much. Thank you so much, Nikhil, Ruchika. Thank you so much, guys. तो this is my contact details. अगर आप मुझसे पहुंचना चाहते हैं तो इस contact details के थ्रू भी पहुंच सकते हैं। अगर नहीं तो आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च कीजिए लाइव वाइज। You will find out the information. This is not only about software, right? I would like to tell one thing. This is not only about software. अगर आप इलेक्ट्रिकल रिलेटेड भी कुछ चीजें पूछना चाहते हैं, करियर पॉइंट ऑफ व्यू, क्या फ्यूचर में आप स्ट्रेंथ्स यूज कर सकते हैं, कौन से सेक्टर में जा सकते हैं, गेट प्रिपरेशन के लिए या फिर एनी अदर या फिर गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए, अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजीज के साथ आईटीज में जाना चाहते हैं ऑल, जस्ट गिव मी अ कॉल। आई एम जस्ट वन कॉल अवे फ्रॉम यू गाइस। आप कभी भी मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर यू। फाइन। सो दिस इज माय एड्रेस एंड दिस इज माय डिटेल्स। आप इसके थ्रू जा सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। So this is done from my side. I would like to hand over this session to Shivani ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. And yes, sir. Yes, guys. One more thing. Sorry, Shivani ma'am, I'm interrupting you. I believe. I would like to say share one sentence with you. Feedback जो होता है ना, feedback जिसको हम लोग बोलते हैं, feedback is the breakfast of champions, right? Feedback is the breakfast of champions. ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आपको ये सेशन होने के बाद एक फीडबैक लिंक दिया जाएगा जहां पे आप सभी को फीडबैक शेयर करना है आप लोग, राइट? तो ये हम लोगों के लिए काफी जरूरी है आपका फीडबैक जानना कि जो चीजें इतना अच्छा जो हमने सेशन किया, ऑर्गेनाइज किया, कॉलेज अथॉरिटीज ने इतने एफर्ट्स दिए आपके लिए, स्प्रेड किया, क्योंकि आपके लिए बस वो बैठ के सुनना है आपको 1.5 घंटा, राइट? 1.5 आवर। लेकिन ये ऑर्गेनाइज करने के पीछे कितनी टेक्निकल दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज होती है, बच्चों को कोऑर्डिनेट करना, वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड। एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट तुलसीराम जी गायकवाड़ पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिन्होंने इतना अच्छा एफर्ट लिया और इतना अच्छा सेशन आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया ताकि आप लोग अपस्किल हो पाए। लेकिन इसका रिकॉग्नाइजेशन तब तक अधूरा है जब तक आप आपके पॉजिटिव फीडबैक चैट बॉक्स में तो आप जरूर दे रहे हैं, लेकिन आप आपके लिंक पे भी वो फीडबैक शेयर करें, तो हम लोगों को पता चलेगा उसके थ्रू कि यस इट वाज वर्थ इनफ, कि हमने जो अपना 2 आवर्स स्पेंड किया वो काफी प्रोडक्टिव था। एंड यस वी हेल्प इन योर प्रोफाइल टू मेक यू बिकम क्वालिफाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। थैंक यू सो मच। शिवानी मैम, यू कैन। Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir, for your motivation and valuable guidance. And I hope your knowledge will really help our student in their future. Now, if any student is having any question or doubt, please raise your hand. We will unmute you to ask your questions. Great. The strength is still 129. I didn't give it. I have thought 130 के साथ start हुए तो at the end of the session 80 तक हो जाएगा. So this is the actually significance कि आप कितने एक्टिव पीपल हैं आप सभी। मेरा नॉलेज तब तक कोई भी वैल्यूएबल नहीं जब तक आपका पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल कि स्टिल स्ट्रेंथ इज सेम। थैंक यू सो मच। सो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड गाइस? विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क मी। As I already shared my contact number, you can also ask me in person as well. लेकिन यहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं ताकि बाकी लोगों को भी इसके थ्रू कुछ नॉलेज मिल पाए।
Is there any question from Anisa? Anyone want to ask anything? You can ask, no problem. कोई भी related. Thank you कुशल, thank you अनिकेत, अखिल, निखिल. ये कॉमन नाम तो मैं कभी नहीं बोलने वाला. These are the same some common names are there. They are repeatedly responding to me. आप कभी भी शायद कॉल करें तो I will recognize it surely. Now, I would like to request Professor Shivani Shende ma'am to propose vote of thanks for today's webinar. Over to you, Shivani ma'am. Am I audible, ma'am? Yes, you're audible. Okay. A warm and graceful afternoon to all present for today's national webinar. The best and beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt by heart. Thank you is one of such prayer among them. So it's my immense pleasure and privilege to propose vote of thanks for today's webinar. I, Shivani Shende, on behalf of Gaikwad Patil Group of Institution and the entire fraternity of the institution, would like to express my sincere thanks to our guest speaker of today's webinar, Mr. Akshay Jain Sir, Center Head, Livewire Nagpur, for his motivational guidance and inspirational words. I am sure, sir, your thoughts have enlightened minds of students and have shown a new path to them, and it will be really helpful to all the participants. I acknowledge our gratitude to you, sir. I would like to express my hearty thanks to our honorable management for giving the platform to organize this webinar and for giving their directions so as to work in right direction. I express my thanks to respected Principal Tulsiramji Gaikwad Patil, College of Engineering and Technology, Dr. Geeta Padore Gaikwad Madam, and Vice Principal Professor Pragati Patil Madam for their valuable guidance and constant support. I would like to extend my thanks to head of the department and wonderful energetic faculty, members of the department who are present for this webinar. I would like to thank people who work behind the scenes to make this event happen. I also express my deep sense of appreciation to all the students who have shown their interest to attend this webinar and for being attentive during the session. Last but not the least, a big thank you to each one of you who made this webinar successful. Thank you once again very much who all were joined for this webinar today. Thank you, ma'am. The feedback and certification link will be circulated in chat box. So all the students are requested to give their valuable feedback and collect the e-certificate. Thank you all.